नददर्श प्रतिचन्नं बल्मीक तृणकिच्च तृणकिच्चकै पिपील पिपीलिकाभिराजीर्णम् मेदस्त्वन्मांसशोणितं तपन्तं तपसा लोकान् यथा भ्रपिहितं रविं विलक्ष्य विस्मितः प्राह हंस हंसतं हंसवाहनम्। अनुवाद अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन। Lord Brahma, who is carried by a swan airplane, at first could not see where Hiranyakasipu was, for Hiranyakasipu's body was covered by an ant hill and by grass and bamboo sticks, because Hiranyakasipu had been there for a long time. The ants had devoured his skin, fat, flesh, and blood. Then Lord Brahma and the demigods spotted him, resembling a cloud covered sun, heating all the world by his austerity. Struck with wonder, Lord Brahma began to smile and then addressed him as follows. Purport. The living entity can live merely by his own power without the help of skin, marrow, bone, blood, and so on. Because it is said, Asango hi ayam purusaha, the living entity has nothing to do with this material covering. Hiranyakasipu performed a severe type of tapasya, austerity, for many long years. Indeed, it is said that he performed the tapasya for 100 heavenly years, since one day of the demigods equals 6 of our months. Certainly, this was a very long time. By nature's own way, his body had been almost consumed by earthworms, ants, and other parasites, and therefore even Brahma was at first unable to see him. Later, however, Brahma could ascertain where Hiranyakasipu was. And Brahma was struck with wonder to see Hiranyakasipu's extraordinary power to execute tapasya. Anyone would conclude that Hiranyakasipu was dead because his body was covered in so many ways. But Lord Brahma, the supreme living being in this universe, could understand that Hiranyakasipu was alive but covered by material elements. It is also to be noted that although Hiranyakasipu performed this austerity for a long time, he was nonetheless known as a Daitya and Rakshasa. It will be seen from verses to follow that even great saintly persons could not perform such a severe type of austerity. Why then was he called a Rakshasa or Daitya? It is because whatever he did was for his own sense gratification. His son Prahlad Maharaj was only 5 years old, and so what could Prahlad do? Yet simply by performing a little devotional service. According to the instructions of Narada Muni, Prahlad became so dear to the Lord that the Lord came to save him. Whereas Hiranyakasipu, in spite of all his austerities, was killed. This is the difference between devotional service and all the other methods of perfection. One who performs severe austerity for sense gratification is fearless in the entire world, whereas a devotee who performs even a slight amount of devotional service is a friend to everyone. Fearful. One who performs severe austerity for sense gratification is fearful to the entire world, whereas a devotee who performs even a slight amount of devotional service is a friend to everyone. Suhridam sarvabhutanam. Since the Lord is the well-wisher of every living entity, and since a devotee assumes the qualities of the Lord, a devotee also acts for everyone's good fortune by performing devotional service. Thus, although Hiranyakasipu performed such a severe austerity, he remained a Daitya and a Rakshasa, whereas Prahlad Maharaj, although born of the same Daitya father,
became the most exalted devotee and was personally protected by the Supreme Lord. Bhakti is therefore sarvopadhi vinirmuktam, indicating that a devotee is freed from all material designations and anya bhilasita sunyam, situated in a transcendental position free from all material desires. श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर हिरण्यकशिपु के तपस्या के बारे में वर्णन आता है। किस प्रकार से हिरण्यकशिपु कठोर तपस्या 100 साल देवताओं के, यानी हमारे यहाँ लगभग 10,000 साल तक उन्होंने तपस्या किया। कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या, उग्र तपस्या। ऐसे तपस्या साधारण रूप से भक्तों को भी करते हुए नहीं देखा गया। ऐसे तपस्या उन्होंने किया और उनके पूरे के पूरे शरीर को सब कीड़े खा गए, चींटियां खा गए। और वो उनके शरीर के ऊपर चींटियों ने घर बना दिया। ऐसे हाँ, कठोर तपस्या करके उन्होंने प्राण को अपने अस्थियों में धारण करके रखे थे। ऐसे बाहर से दिख रहा था कि मानो कि तो इनका तो मृत्यु हो गया होगा, पर ब्रह्मा जी को पता था कि इनका मृत्यु नहीं हुआ। ये इस शरीर के अंदर, इस हस्तियों के अंदर अभी भी वो तपस्या कर रहे हैं, आत्मा अभी भी उस अस्थियों में है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि कठोर तपस्या करने पर भी वो राक्षस राक्षस ही रहते हैं। जबकि तपस्या का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तपस्या का उद्देश्य होना चाहिए कि मन और इंद्रियों को वश में करके पूर्व सारे पाप कर्मों को कम करते हुए भगवत भक्ति में अग्रसर होना, ये लक्ष्य होना चाहिए। व्रत, तपस्या, उपवास, और ये सारे कृष्ण की ओर जाने के लिए होना चाहिए। पर इन्हीं चीजों को स्वीकार करके ऐसे राक्षस क्या करते हैं? वो अपने इंद्र तृप्ति के लिए उसको प्रयोग करते हैं। यानी ये तपस्या, ये व्रत, ये जो भी चीजें हैं, उपवास इत्यादि, ये उस प्रकार से उनको लाभ करता है कि मानो एक सर्प को, जो विषधारी सर्प है उसको आप दूध पिलाएंगे, वो जितना शक्तिशाली होगा उसका जहर उतना बढ़ेगा। तो वैसे ही इन लोग ये तपस्या कर करके अपने विष को बढ़ा रहे हैं ताकि लोगों को हानि पहुंचा सके। और हिरण्यकशिपु वर प्राप्त करने के बाद ऐसा नहीं कि वो गो और ब्राह्मण को पूजा कर रहा था या भक्त बन गया, तपस्या करके हृदय निर्मल हो गया। तपस्या करने के बाद भी कंक्लूजन क्या निकला? हे ब्रह्मदेव, तीनों लोकों में मेरा मृत्यु नहीं होना चाहिए, मुझे आधिपत्य चाहिए। वो अहंकार कम होने के बदले वो बढ़ गया है। और जैसे ही शक्ति मिल गया, ऐसे उत्पात मचाया, ऐसे उत्पात मचाया कि प्रहलाद जैसे एक शुद्ध भक्त, सरल हृदय वाले, अच्छे व्यवहार रखने वाले एक सदाचारी अपने ही बालक को कष्ट देने के लिए वो पीछे नहीं हटे। ये असुरों के स्वभाव होता है, राक्षसों के स्वभाव होता है। तो इसलिए राक्षस भी तपस्या करते हैं, भौतिकवादी लोग तपस्या करते हुए आप लोग देखेंगे संसार में। हाँ, आप बॉम्बे में अगर जाएंगे, हम लोग देखते थे बॉम्बे में, सुबह अगर 3 बजे भी जाएंगे आप कोई भी लोकल स्टेशन में, बहुत भीड़ होता है वहां पर। और ट्रेन में भी लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि सब अपना अपना व्यापार के लिए भागते रहते हैं। सुबह सुबह की बात है, जितने सब जॉब करते हैं वो सब 8-9 बजे भीड़ होगा, 7 से लेकर 10 बजे तक। हाँ, और सुबह जो 3 से ले या 3, 3:30 जब भी उनका ट्रेन चालू होता है, तब से लेकर 7 बजे तक केवल व्यापारी लोग आपको दिखेंगे। हाँ, कोई फूल वाले, कोई सब्जी वाले, कोई ये कोई वो सुबह सुबह बिना स्नान किए
हाँ, सब लोग जो है काम पे लगे, देख कर लगेगा अरे कितने अच्छे लोग हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। और जल्दी तो उठ जाते हैं, पर करते क्या है जल्दी उठ के, वो जरूरी है। कई लोग हैं सुबह जल्दी तो उठ जाते हैं, पर बिना स्नान किए शौच क्रिया इत्यादि करके जॉगिंग के लिए निकल जाते हैं, कि भाई शरीर स्वस्थ रहे। ऐसे पूरा जीवन भी सुबह उठे तो भी भक्त नहीं बनते। क्यों? क्योंकि उनके तपस्या, वो शरीर को स्वस्थ रखना क्यों चाहते हैं, ताकि और अच्छे से हम इंद्र तृप्ति कर सके। हमारे एक स्टूडेंट है यहाँ पर, वो जिम जाना चालू कर दिया। बोले प्रभु जी सुबह उठ के मैं जिम जाऊंगा रोज, तो चालू भी कर दिया पैसे वैसे देख के। मैंने बोला भाई शरीर तो स्वस्थ लग रहा है आपका, तो आप जिम जाना क्यों चालू कर दी? नहीं नहीं प्रभु जी, थोड़ा पेट बाहर आ रहा है ऐसा लग रहा है। कोई पेट बाहर नहीं आ रहा था। मैंने बोला तुमको सिक्स पैक बनाना है, दूसरों को इम्प्रेस करना है, मुझे ऐसे ही लग रहा है। तो हंसने लगा। प्रभु जी नहीं नहीं ये बात नहीं है। बोला यही बात है। तो आप जब सुबह उठ के 2 घंटा चल लो तो शरीर तो स्वस्थ ऐसे ही हो जाएगा। तो आपको कसरत करके शरीर को इतना कष्ट देने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वो दूसरों को इम्प्रेस करना चाहता है। यही लक्ष्य में सुबह सुबह उठ के लोग भागते हैं। यहाँ तक एक व्यक्ति मंदिर जाता है रोज, पहाड़ के ऊपर गणेश जी हैं हमारे यहाँ, रोज जाता है वो। और ऐसा नहीं सुबह उठ के जाता है, वो दिन में जाता है, कभी 1 बजे कभी 12 बजे, जब उसके मूड हुआ तब जाता है। तो उसको वो बोल रहा था पूज मैं तो रोज जाता हूँ सुबह दर्शन करने, रोज जब भी दिन में टाइम मिले। मैंने कहा आप दर्शन करने जाते हो कि शरीर स्वस्थ रहे इसलिए सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हो, ताकि कोई बीमारी ना आए? तो वो भी हंसने लगा, बोला हाँ प्रभु जी दोनों काम हो जाता है। तो लोग जो आध्यात्मिक कार्य भी हो, कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी, उसमें भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचते हैं। ये भौतिकवादियों के कैलकुलेशन है। उनके पूरे कैलकुलेशन ऐसे ही रहता है उनका, क्योंकि बुद्धि में इंद्रिय तृप्ति बैठा हुआ है, इसलिए उनके हरेक मन के विचार, इंद्रियों के कार्य, सब कुछ इंद्र तृप्ति के लिए ही रहता है। इसलिए वो कितना भी तपस्या कर ले उनका सुधार नहीं होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कठोर उग्र तपस्या मना किया जाता है वैष्णवों के लिए खास करके। उग्र तपस्या अगर आप करेंगे तो इसमें कोई लाभ नहीं होगा, इसमें अहंकार की वृद्धि होगा, उग्र तपस्या में मना करते हैं। तो ये कर सकते हैं जिनके ऐसे स्तर में है भक्ति में, जैसे श्रील हरिदास ठाकुर जी हैं, वो बिल्कुल 22 घंटे तक जप करते थे। अब 2 घंटे में स्नान इत्यादि जो भी भोजन करते होंगे वो 2 घंटे में कर लेते थे। ऐसे हम लोग को साधारणतः भक्तों को मना किया गया, क्योंकि ऐसे करेंगे तो इसमें हमको ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे, कुछ दिन के बाद सब बंद करके भाग जाएंगे। हम्म, तो इस प्रकार से हमको जितना हमको तपस्या दिया गया है उतना तपस्या करना चाहिए। नहीं तो जो तपस्या करने के पीछे उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हम भूल जाएंगे। उपदेशामृत में एक श्लोक आता है, नियमाग्रह करके श्लोक आता है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यश्च षड्वीर भक्तिर विनश्यति। आज मैं यही सोचा था उपदेशामृत में ही क्लास दूं। अगर उत्तम जगदीश को आज्ञा दे तो कल उपदेशामृत पे या तो भक्ति रसायन सिंधु पे क्लास करेंगे। तो ये इसमें क्या क्या नियम आग्रह, नियम आग्रह का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति नियमों को पालन करने में बहुत रुचि दिखाता है और उसके पीछे उद्देश्य को भूल जाता है। उसके पीछे उद्देश्य को भूल जाता है वो। इसलिए उद्देश्य को भूले बिना नियमों को पालन करना सीखना चाहिए। इसके पीछे उद्देश्य क्या, मैं क्यों कर रहा हूँ ये? मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूँ, क्यों उठ रहा हूँ? क्योंकि मुझे हरि भजन करना है, मंगल आरती करना है, नाम जप करना है, शास्त्र पढ़ना है। मैं सुबह उठ के इन कार्यों के लिए मुझे उठना चाहिए। और मैं अगर शुद्ध भोजन कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ ये? मैं शाकाहारी नहीं है, हम प्रसाद खाते हैं, केवल शाकाहारी भोजन नहीं करते। शाकाहारी तो बंदर भी होते हैं, घास फूस खाते हैं, वो भी पत्ते वत्ते खाते हैं, घूमते हैं। वो कपड़े वपड़े नहीं पहनते, वो तो लगता है वो बड़े बाबा जी है। हाँ, दिखने में तो बड़े वैराग्य लगते हैं, पर वो वैराग्य नहीं है उनका। तो हम शाकाहारी नहीं है, हम कृष्ण प्रसाद को ही ग्रहण करते हैं। तो ये उद्देश्य पता होना चाहिए क्यों हम ये शाकाहार, क्योंकि भगवान को भोग नहीं लग सकता तामसिक भोजन, तो हम कैसे उसको ग्रहण करें? तो इस प्रकार से मनोवृत्ति होना चाहिए, हर एक चीज हर एक कार्य के पीछे यही उद्देश्य होना चाहिए। एकादशी हम लोग भोजन नहीं करते, अन्न इत्यादि ग्रहण नहीं करते। हाँ, एकादशी को कई लोग बोलते हैं हाँ डॉक्टर बोला है कम से कम महीने में 2 बार उपवास करना चाहिए, ऐसे करने से शरीर स्वस्थ रहता है, कैंसर जैसे बीमारियां ठीक हो जाते हैं,
उपवास आजकल बहुत रेकमेंड किया जाता है, आजकल फास्टिंग के ऊपर बहुत जोर देते हैं डॉक्टर लोग। फास्टिंग करो, तो शरीर में कैंसर सेल भी मर जाएंगे, चर्बी कम हो जाएगा। ये सब उद्देश्य है एकादशी करने का? नहीं। माधव तिथि, ये माधव तिथि भक्ति जननी, ये भक्ति को सृष्टि करता है, भक्ति को, भक्ति में इनको प्रगति कराता है। इसलिए एकादशी आते ही बड़े प्रसन्न हो जाना चाहिए। जो भगवान को सबसे प्रिय जो एकादशी है, और जैसे भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज जी को उपदेश देते हैं, एकादशियों के बारे में महात्म्य बताते हैं, हम भी बड़े प्रसन्न होकर बड़े उत्साह से एकादशी को पालन करना चाहिए। और उपवास करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक समय भगवान के लिए दे सके। क्योंकि अभी भोग बनाएंगे, भोग लगाएंगे और प्रसाद खाएंगे, और उसके बाद फिर बर्तन धोएंगे, फिर खाने के बाद कुछ देर बाद प्यास लगेगा। ये सब चीजों में समय ना खराब करके क्या करना चाहिए? केवल नाम जप करना चाहिए। कोई समय की ध्यान कहीं जाना ही नहीं चाहिए, बैठ के नाम जप करिए। और पानी भी नहीं पिया व्यक्ति तो क्या ही, और टॉयलेट जाएगा, बाथरूम जाएगा, उसको तो कहीं जाना ही नहीं, बैठ के माला करते रहो। ये उद्देश्य है। और इतना ही तपस्या करना चाहिए जितना कहा गया है। ज्यादा उग्र तपस्या करने के नाम पे अगर आप उसमें उतरेंगे उप तपस्या में, तो जो मूल आदेश गुरु से मिला है उससे हम लोग डाइवर्ट हो जाएंगे। इसलिए हम, जैसे कल मैं कह रहा था, गुरु जी कहते हैं कि आप ठाकुर जी की सेवा करो, शुद्ध रहो, पवित्र रहो, प्रचार कार्य में लगो। और कोई कहेगा मैं चतुर्मास कर रहा हूँ, नाखून नहीं काट सकता, मैं बाल नहीं काट सकता, मैं प्रचार क्या ही करूँ, मैं तो केवल भजन करूंगा। कठोर तपस्या, एक ही बार खाऊंगा, एक बार खाने की वजह से मैं कमजोर हो गया, या मैं केवल इतना पानी पी के रहूंगा, बहुत कमजोर हो गया, मैं बाहर जा ही नहीं सकता, मैं प्रचार कर ही नहीं सकता, ग्रंथ वितरण नहीं कर सकता, आरती भी नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बैठूंगा केवल माला करूंगा। क्या है, गुरु जी रेकमेंड करेंगे, प्रभुपा जी बोलेंगे हाँ अच्छा कर रहा है, बैठ के जप कर रहा है। प्रभुपा जी एक मंदिर में आए, एक सेंटर में, तो वहां पर सब भक्त लोग स्वागत करने लाइन में खड़े हैं, सब पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति तो श्लोक उच्चारण कर रहे थे, एक भक्त बहुत अच्छे अच्छे श्लोक उच्चारण कर रहे थे, नया नया संस्कृत सीखे थे, और सोचे प्रभुपा जी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे मेरे श्लोक उच्चारण देखकर। प्रभुपाद जी उसके पास आके बोलते हैं डू समथिंग प्रैक्टिकल, डोंट वेस्ट योर टाइम। बोलते संस्कृत सीख के समय खराब मत करो, कुछ प्रैक्टिकल सेवा कर लो। तो हमको श्लोक याद करने हैं, प्रार्थना याद करने हैं, गीता भागवत याद करना है, इसका अर्थ नहीं कि उसी में डूब जाना है और सेवाएं नहीं करना है। हाँ, भक्त रसम सिंधु में आज मैं पढ़ रहा था सुबह, प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं, हाँ कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दीक्षा ले लिया है और भगवान की सेवा नहीं करता है तो उसका पतन हो जाएगा। ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो सेवा हमको फर्स्ट प्रायोरिटी इज आवर सर्विस। और प्रभुपाद जी क्या प्रायोरिटी दिए? प्रीचिंग। प्रीचिंग को प्रायोरिटी किस प्रकार से दिए? इमरजेंसी के हिसाब से, मतलब जैसे कि होता है ना, इमरजेंसी वार्ड होता है हॉस्पिटल में, तो वैसे हम लोग का इस्कॉन जो है इमरजेंसी वार्ड है। इमरजेंसी वार्ड क्योंकि यहाँ ऐसे रिलैक्स होकर प्रीचिंग नहीं चलता है। क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया ज्यादा शिष्यों को स्वीकार नहीं करना है, ज्यादा बड़े बड़े मंदिर बनाने में समय खराब नहीं करना है, भजन करना है, ऐसे शास्त्रों में कहा गया। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं इस बारे में कि हम लोग फिर भी रिस्क लेते हैं, ज्यादा शिष्य नहीं बनाएंगे तो लोग भक्त कैसे बनेंगे। इसलिए इसका जो भी परिणाम हो हम इसको स्वीकार करेंगे, और हम लोग शिष्य भी बनाएंगे और मंदिर बनाएंगे ताकि लोग भगवान से जुड़ जाए, ऐसे स्वभाव। इसलिए शास्त्रों में क्या कहा गया है, उसके सही अगर चीजों को समझना हो तो आचार्यों के अनुगत्य में रहेंगे तो समझ में आएगा वास्तव में शास्त्र में क्या कहा गया है। नहीं तो हम सोचेंगे हाँ ज्यादा शिष्य नहीं बनाना है, और हम तो किसी को पैर छूने भी नहीं देंगे। प्रभुपाद जी तो चरणाभिषेक भी कराते थे, आचार्य है। और उनके इस संसार में लीलाएं उन कर रहे थे तभी उनके विग्रह की स्थापना हो गया था। दक्षिण भारत से कोई बड़ा पंडित आचार्य आकर उनको कहते हैं कि स्वामी जी आपके स्वास्थ्य खराब रहता है और आपके मूर्ति की पूजा आपके ही उपस्थिति में हो रहा है, ये ठीक नहीं है आपके लिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मैं इसी के, और सब लोग आएंगे आपको प्रणाम करेंगे तो सबका पाप आपके ऊपर आएगा। प्रभुपाद जी बोलते मैं किसके लिए आया हूँ? इसी काम के लिए तो आया हूँ, सबका पाप लेने के लिए। तो वो तो बिल्कुल आश्चर्य हो गए, और अरे क्या है, आचार्यों की भाव को कोई नहीं समझ सकता। आचार्यों की जो भावना है वो, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। बड़े बड़े विज्ञ और विद्वान भी आचार्यों के कार्यों को नहीं समझ सकते, वो क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं।
भगवान के हृदय को समझने वाले वैष्णव होते हैं। इसलिए वैष्णव के बाहरी कार्यों को देखकर हमको आलोचना नहीं करना चाहिए। उनके हृदय में कितने करुणा है, समुद्र के समान करुणा है। पूरे ब्रह्मांड को शरण दे सकते हैं, तीनों लोगों को शरण दे सकते हैं। ये आचार्य होते हैं, ये वैष्णव होते हैं। श्रीपद रामानुजाचार्य जब मंत्र लेते हैं, गुरु जी उनको कहते हैं, देखो ये मंत्र बहुत सीक्रेट मंत्र है, किसी को मत बताना, नहीं तो नरक में जाओगे। ठीक है गुरु जी, चले गए। और जाकर गांव के बिल्कुल वो मंदिर की दीवार के ऊपर चढ़ के बोले, सुनो सुनो, जिस जिस को चाहिए स्पेशल, आ जाओ, सब कुछ विशेष बोलने वाला हूं। सब आ गए। बोले आप सबको बैकुंठ जाना है? बोले हाँ जाना है। बोले कि हमारे गुरु जी मंत्र दिए हैं, वो जपते ही आप बैकुंठ चले जाओगे, बस कुछ करने की जरूरत नहीं। ओम नमः नारायणाय मंत्र बोल दिए सबको। सब लोग पूरे गांव वाले जपने लगे, तो गुरुजी बड़े क्रोधित हो गए और बुलाए, अरे रामानुज, ये क्या कर दिया? तुमको मैं बोला था ना नरक में जाओगे, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, सबको बांट दिया मंत्र। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य कहते हैं, गुरुजी अगर मैं अकेला नरक में जाने से बाकी पूरे गांव बैकुंठ जा सकते हैं, आपने कहा ना ये मंत्र जो जपेगा वो बैकुंठ जाएगा, अगर मेरे नरक जाने से पूरे गांव बैकुंठ जा रहे हैं तो ये अच्छा डील है, अच्छा ऑफर है ये। तो इस प्रकार से कहते हैं। तो इसलिए ये आचार्यों के मन की जो भावना इस प्रकार से होती है। तो इसलिए आचार्य जो कह दिए हैं, जितना हमको करने कहे हैं उतना अच्छे से करना चाहिए, क्वालिटी करना चाहिए। क्वांटिटी से ज़्यादा जरूरी है क्वालिटी। शिला प्रभुपाद जी इतने दयालु है, आप अगर विचार करेंगे। देखिए, मैं भक्ति रसम सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं, तुलसी परिक्रमा करना, है ना, और भी जो अंगों को कहते हैं, उन अंगों को पालन करना, एकादशी पालन करना इत्यादि, इसके पीछे इतना मतलब गुह्य बातें छुपे हुए हैं। हम भक्ति करते हैं, भक्ति जो है स्वतंत्र है, सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्ति रधोक सजे, अहेतु की अप्रतिहता, भक्ति अहेतु की है, अप्रतिहता यानी वो रुक भी नहीं सकता। भक्ति जो है भावनाओं से चलता है कि आपके भगवान के प्रति क्या भावना है। आप बैठ के आराम से हरे कृष्णा करेंगे तो भी तो भक्ति है वो। प्रेम से भगवान को अगर खिलाएंगे बिना नियम पालन किए, आप भाव से अगर खिला रहे हैं तो भगवान स्वीकार करेंगे, योग्यता नहीं देखते हैं, ये हम सुने। पर भक्तों, ऐसे भक्ति भी ठीक से लंबे समय तक नहीं चलता है, हमारा पतन हो जाता है। कई बार अकस्मात पतन होता है और लोगों को समझ में नहीं आता है हम लोग को कि पतन कैसे हो गया। अकस्मात पतन के कुछ कारण हैं। क्या कारण है? वैष्णव अपराध एक प्रमुख कारण है। अकस्मात पतन, कुछ जघन्य वैष्णव अपराध हो गया तो भक्ति से हम गिर जाएंगे तुरंत। और किस प्रकार से गिरेंगे? भक्ति के अंगों में रुचि नहीं होगा, भक्तों की संगत में रहना, भक्तों को मिलना, इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा। और अगर हरिनाम कर भी रहे हो, पर वो नाम बोल तो रहे हैं अक्षरों को, पर बिल्कुल रुचि नहीं, कोई स्वाद नहीं, कोई आनंद नहीं उसमें। और भक्ति के अंगों पे अरुचि उत्पन्न होना, ये वैष्णव अपराध का एक परिणाम है। माला लेके तो घूम रहे हैं पर मजा नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और कथा सुनने में कोई रुचि नहीं, भगवान की आरती करने में कोई रुचि नहीं। तो ये अपराध, एक इस पतन क्यों हो गया? अचानक इतने साल से हम कर रहे हैं, अचानक गिर जाते हैं, ये अचानक गिरने के पीछे कारण वैष्णव अपराध हो सकता है, एक शास्त्र में कथन है। दूसरा क्या कारण है कि व्यक्ति के पूर्व पाप कर्म, वो इतने जन्मों से ऐसे ऐसे जघन्य पाप किया रहते हैं हम लोग, कि वो अचानक वो पाप ऐसे बीच में प्रकट होता है कि हमको भक्ति से नीचे गिरा देता है। तो इसीलिए तेषाम तो अंतगताम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, जब तक पाप की अंत नहीं होगा और पुण्य कर्म नहीं बढ़ाएंगे, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़ता, दृढ़ता से भजन नहीं हो सकता। वही दृढ़ता से भजन करेगा जिसके पाप अंत हो गया है। इसलिए हमको दोनों प्रोसेस एक साथ करना पड़ेगा। क्या दोनों प्रोसेस? पहले तो पाप कर्म को बंद करना है, अभी नहीं करना है, पाप जो हो गया हो गया। फर्स्ट, भगवान की शरण में आ जाएंगे, भगवान आप बचाओ अभी, अब गुरु की आज्ञा से हम जीवन जिएंगे, तो अभी जो भी आगे होगा वो गुरु देखेंगे, एक ये हम पालन करते हैं। और दूसरा, पाप कर्म बंद करने के बाद जो पाप कर्म पहले हो चुका है उसको कम करने के लिए हम लोग कई कार्य करते हैं, जैसे कि एकादशी के पालन करना। एकादशी भगवान को प्रिय है, और इस तिथि में किए गए भक्ति का परिणाम बहुत ज्यादा मिलता है। इसलिए पुण्य कर्मणाम ये बढ़ता है, भक्तिमय पुण्य। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन,
ये जो पुण्य है, भक्तिमय पुण्य, एकादशी को ये डबल होता है, वृद्धि होता है और विशेष कृपा प्राप्त होता है, ये हम बढ़ा रहे हैं। साथ साथ में एकादशी पालन करने वाले के पूर्व कई संचित पाप कर्म जो है वो कट जाते हैं एकादशी से। तो इसलिए इसको करना अनिवार्य है, नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, करेंगे तो पाप कटेगा। तो इसलिए आपको अनिवार्य करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो पापी बन जाएंगे। जो अन्न खाएंगे उसमें पाप पाप रहता है। तो इसलिए ऐसे डिजाइन किया गया है कि हमारे पाप कटते रहे, कटते रहे, कटते रहे, कटते रहे। और सबसे पावरफुल चीज क्या है पाप काटने का? सुबह सुबह, जानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। हर एक पद में ब्रह्म हत्या रूपी पाप भी कट जाता है। तुलसी महारानी की परिक्रमा प्रभुपाद जी सुबह शाम करने के लिए फिक्स कर दी। कैसे डिजाइन किए देखिए, प्रतिदिन सुबह तुलसी परिक्रमा करो, धीरे धीरे इतने करोड़ों पाप किए हैं, पाप कम होते रहेंगे, शांति से बैठ के नाम जप करते रहोगे। अगर पाप कर्म नहीं कम हुए वो भजन करते करते गिर जाओगे अपने स्तर से, शुद्ध नाम नहीं ले पाओगे। इसलिए नाम जप करते करते अब नाम अपराध से शुद्ध नाम तो पहुंच सकते हैं, नाम में इतनी शक्ति है, हमको उठा सकता है। पर नाम करने दिया जाएगा तब ना, वो मन नाम करने देगा ही नहीं है। वो पाप और अपराध के परिणाम से हमारा ऐसे पतन होता है कि बीड़ में कहीं लटक जाता है। हाँ, कई बार तो एक हफ्ते बाद लोग आते हैं, प्रभु जी हमारे सेंटर में बीड़ बैग रह गया था। कब रह गया था? पिछले संडे को रह गया था। हाँ, ऐसे भी बोलते हैं कई लोग। तो नाम जप करेंगे तब ना प्रगति होगा। तो नाम जप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन नियमों के पालन करना चाहिए। तो धीरे धीरे हम नाम जप में रुचि बढ़ेगा। सुबह उठते ही गुरु का स्मरण करना, संसार दावनल गाना, नरसिंह आरती गाना और तुलसी परिक्रमा करना, चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करना, शिक्षा अष्टकम स्मरण करना, ऐसे बढ़िया डिजाइन किया गया है। ये जो इस्कॉन में सिस्टम दिया गया है ना, ये आप मान लीजिए बिल्कुल पूरे ब्रह्मांड में जितने शास्त्र है सबका निचोड़ है। इसके अलावा 1% कहीं सोचना भी नहीं है कि ये और कर देते तो अच्छा हो जाता। हाँ, ये ऐड कर देते, ये ऐड कर देते, कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, बहुत बिल्कुल सब कुछ चर्वण करके सार दे दिया गया। आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जैसे दही मंथन करके अगर सोचिए माखन निकाल दिए हैं, और आप नवनीत, हाँ, जो माखन कहते हैं, और आप बोलेंगे नहीं नहीं इसको थोड़ा और चर्न कर देते हैं, शायद थोड़ा और कुछ स्पेशल माखन निकल जाएगा। अरे वो प्रभुपाद जी कर दिए हैं सब। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी सब जो हमारे गोस्वामी गण हैं, और जीव गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, सारे शास्त्रों के निचोड़ को शास्त्रों से कोट करते हुए हमको सार दे दी। इसलिए अन्य पुराणों को छूने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि सब कुछ दे दिया गया है। भक्ति रसम सिंधु देखिए, अलग अलग शास्त्रों का कोटेशन है। आप जीव गोस्वामी के आप अलग अलग ग्रंथ देखिए, वो सब अलग अलग पुराणों से उद्धरित करते हुए उन्होंने कोट किया है। वो सब शास्त्रों से ही हमको निचोड़ कर दिए हैं कि भाई ये लिखा गया है, आपको ये करना है। और हमको जाके यहाँ वो ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पूर्वज जो है, बाप दादाओं ने काम कर चुके हैं, सारा संपत्ति इकट्ठा कर दिए। हाँ, तो हमको अभी तो केवल मिलेगा, अपने आप गिफ्ट मिलने वाला है हमारे संपत्ति। तो मिल गया है सब। इसलिए ज्यादा बुद्धि लगाने का जरूरत नहीं है। हाँ, तो जो दे दिया है ना वही करो, जितना बोला गया है ना उतना ही करिए। इसे ज्यादा करने की जो बुद्धि लगाएंगे, ज्यादा करने में नुकसान क्या है? कई लोग पूछते हैं, पूछे थोड़ा और ज्यादा कर लें तो क्या नुकसान? ज्यादा करने में नुकसान तो कुछ नहीं, ज्यादा तो अच्छा ही है। पर समस्या ये है कि ज्यादा बुद्धि लगाकर हम लोग क्या करते हैं, जो नियम दिया गया है उसका वैल्यू हम खो देते हैं। हम सोचते हैं कि हम एक्स्ट्रा जो कर रहे हैं ना उससे ही हमारा प्रगति हो रहा है। जब प्रभुपाद जी दिए तो बेसिक चीजें दिए हैं, ऐसे बुद्धि में आ जाता है। अरे हम तो अन्य पुराण शास्त्र पढ़े, कितना इन्फॉर्मेशन मिला है, प्रभुपाद जी तो बेसिक चीजें दिए हैं। ये उसका साइड इफेक्ट है। हाँ, मैं 2 बजे उठ के भजन करता हूँ, तब जाके मेरा प्रगति हुआ। 4:30 मंगला आरती में क्या रखा है? ये मन में अगर आ गया ना, प्रभुपाद जी जो दिए उससे अधिक कर रहा हूँ तभी मेरा प्रगति हो रहा है। अब इसी तरीके से दूसरों को उपदेश देगा, जिसको भी मिलेगा व्यक्ति वही उपदेश देगा। हाँ, कई लोग देखिए, मैं देखता हूँ घर बार छोड़ के ब्रज में रहते हैं और लोगों को यही दिमाग में भरते हैं। हाँ, एक व्यक्ति ब्रज में शिफ्ट हो गया था, मुझे कह रहा है, प्रभु जी ये सब छोड़ो, मोह माया, ये सब मैनेजमेंट वगैरह छोड़ो, क्यों ये सब कर रहे हो? शांति से आओ भजन करो ब्रज में। हाँ, ब्रज की महिमा बता रहे थे, ब्रज की धूल की महिमा। रोज ब्रज धूली रखो, स्वीकार करो, या तो ब्रज में आ जाओ, ये सब छोड़ो मैनेजमेंट। अब वो सोच रहा है
कि जो बेसिक दिया गया, जो चीजें हमको धीरे से प्रभुपाद जी ऊपर उठाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसका कोई कीमत नहीं है। कीमत किसका है? सब कुछ त्याग के ब्रज में जाना, वही पावरफुल। तो ये दोष बुद्धि है। हाँ, वो दोष किस में देख रहा है? आचार्य के द्वारा दिए गए जो मार्ग है उसमें दोष देख रहा है। उत्साह निश्चया धैर्या तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्याग सतो वृत्ते षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति। सतो वृत्ते, हमको पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा दिए गए मार्गों पे ही चलना, यही तपस्या है। तपस्या के लिए कुछ और बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो दे दिया उसमें पूरा एनर्जी डाल दीजिए। सुबह कहा गया है कि हमको मंगलारती करना है संसार दावनल गाते हुए, यही कहा गया है। कई बार आजकल अन्य जो वैष्णव होते हैं, ये ऐसे ही तिलक धारण करने वाले भी कई होते हैं, और वो वीडियो में जो है प्रभुपाद जी का निंदा करते हैं, क्या बोलकर? ये सुबह सुबह संसार दामनल क्या है? सुबह सुबह तो ठाकुर जी के ये वाले भजन गाना चाहिए था। ठाकुर जी का पूजा, मंगल आरती ठाकुर जी का होता है, और ये क्या है? संसार दामनल चालू कर दिए प्रभुपाद जी ने। ऐसे निंदा करते तो कई बार लोग सोचते हैं, अरे हाँ सही बात है, तो हम ज्यादा बुद्धि हो गया हम में, तो अभी हम कुछ और गाएंगे। सुबह उठते ही गुरु के माध्यम से कृष्ण की स्मरण कर रहे हैं। निकुंजयो रति केलि सिद्ध्यै यायाल वीर्योक्तिरपेक्षणीय, निकुंज लीला की स्मरण कर रहे हैं गुरु के माध्यम से। श्री राधिका माधवयोरपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम प्रतीक्षणा स्वादन लोलुपस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। ये होना चाहिए। तो इसलिए सुबह उठते ही प्रातः गुरु के माध्यम से गुरु का स्मरण करते हुए निकुंज लीला की स्मरण करते हैं। तो इस बात को हमको समझना चाहिए। तो उसको फोकस और फोकस करिए। जैसे कि आप कई बार वो मैग्नीफायर होता है ना, मैग्नीफायर जो ग्लास होता है, उससे आप अगर फोकस करेंगे तो पेपर जल जाता है। बचपन में हम क्या करते थे, है ना? सूर्य किरण में आप रखिए, उसको फोकस करेंगे प्रॉपर, अगर एक पॉइंटेड रहेगा एक जगह उसका लाइट, तो जल जाता है। वो जितना फोकस करेंगे तो ही वो होता है, और फोकस नहीं करेंगे ऐसे घुमाते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो इस जो दे दिया गया मार्ग, उसमें इतना फोकस कर दीजिए कि उसका आपको अच्छा, बिल्कुल पूरा लाभ आपको मिल सकता है। और उसी में ढीला ढाला करके कुछ और बुद्धि लगाएंगे, परेशान हो जाएंगे, अरे ठीक से प्रगति हो नहीं रहा है यार। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो दिया गया उसमें पूरा एनर्जी नहीं लगा रहे। सुबह उठते ही बड़े श्रद्धा से संसार दावनल गाना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र गाना चाहिए, प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र उसमें आता है, जय श्री कृष्ण चैतन्य पंच तत्वों का स्मरण होता है। जय ध्वनि, जय ध्वनि बहुत जरूरी है। जय ध्वनि सुबह उठ के सारे पूर्ववर्ती आचार्यों के स्मरण करना, तीर्थों के स्मरण करना, ये जय ध्वनि में आता है। और जय ध्वनि अनिवार्य है, शॉर्टकट नहीं करना चाहिए कि जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, से बाद में हो गया। अनंत कोटि वैष्णव वृंद है, वो बीच में और भी चीजें आते हैं। शिल भक्ति सिद्धांत महाराज की जय, शिल गौर प्रसाद बाबा जी महाराज की जय, है ना? ऐसे ऐसे जाना चाहिए। हाँ? रूप श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सड़ गोस्वामी प्रभुगण की जय, नामाचल श्री हरिदास ठाकुर की जय, हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय, पंचतत्व के स्मरण। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय, श्री श्री वृंदावन धाम की जय, नवदीप मायापुर धाम की जय, श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, वृंदे देवी तुलसी महारानी की जय। ये सब होना चाहिए, पूरे स्मरण होना चाहिए, स्पष्ट पूरा, आधा अधूरा नहीं। शिला प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, खत्म नहीं, स्पष्ट होना चाहिए। और जय जयकार बोलना भी चाहिए। कई लोग सर झुका के सुबह सुबह मंदिरों में प्रणाम तो करते, बोलते कुछ नहीं। आप उसमें जय जयकार करो, आपके जीवन में जय ही जय होगा, कभी पराजय नहीं होगा। जोर जोर से जय जयकार करना चाहिए। एक भक्त प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र, प्रणाम करके प्रणाम मंत्र बोल रहे थे, सुनाई दे रहे जैसे, प्रभुपाद जी बोले जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। तो गुरु को प्रणाम करते वक्त भी मंत्र जोर से बोलना चाहिए। आप लोग को ये पता होगा, जब हम प्रणाम करते हैं, जो अष्टांग प्रणाम या पंचांग प्रणाम करते हैं, उसमें एक अंग क्या है? वाणी। अब जो बोल रहे हैं वो भी एक अंग है। तो इसीलिए हम नहीं बोलेंगे तो फिर वो अष्टांग नहीं हुआ। तो बोलना चाहिए, अष्टांग प्रणाम बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से हमको ये सब चीज़ों के फॉलो करना चाहिए। सोचिए, कोई व्यक्ति बड़े ध्यान से गुरुवाष्टक गाया हो, बड़े ध्यान से हरे कृष्ण महामंत्र गाया है, और नरसिंह भगवान को स्मरण किया है, और जय ध्वनि बोला है, वो क्या कृष्ण भावनामृत नहीं बन पाएगा? ऐसे पावरफुल हो जाएगा कि पूरा दिन माया से बचेगा।
फिर अगले दिन वापस जैसे कि जैसे जैसे होता है ना, इस तालाब में अंदर काई भर जाता है, जैसे ही कोई पत्थर फेंको तो काई अलग हो जाता है, साफ हो जाता है पानी, फिर से काई जम जाता है रात को। तो वैसे ही हमारे मन में काई जमता रहता है रोज, माया रूपी काई। और जैसे ही आप सुबह उठ के मॉर्निंग प्रोग्राम करो तो मानो बड़ा पत्थर डाल दिया अपने पानी में, तो माया दूर हो जाती है, अरे अरे ये मॉर्निंग प्रोग्राम कर दिया, अब इससे दूर हो जाओ। फिर जैसे ही आप धीरे 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 शाम होता है तो फिर वापस सब माया जम जाता है। प्रतिदिन ये काम करना है, तो भगवान कृपा करके ऊपर उठाते हैं। ना बोलते हैं कि बहुत मेहनत किया है, पूरा बिल्कुल ध्यान से ये सारे कामों को किया, उठाओ इसको अभी। हम सिद्धि प्राप्त कर लेंगे अपने प्रयास से, इसका कोई गारंटी नहीं है, पर हमारा प्रयास देखकर भगवान उठा लेंगे, गुरु उठा लेंगे। इसने प्रयास किया। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, मेरा धोती पकड़ो मैं ले लूंगा भगवत धाम। धोती पकड़ो का मतलब क्या है? मेरे आज्ञा से जीवन जियो, जो मैं नियम दिया हूँ इस्कॉन में वो करो, उठा लो। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी जब भगवत धाम जाते हैं तो उन्होंने भी अनेक उपदेशों में एक उपदेश ये भी बोले हैं, नेवर लीव इस्कॉन। इस्कॉन कभी मत छोड़ो। लोग इस्कॉन छोड़ देते हैं ये सोच के हम ज्यादा होशियार हो गए, अभी हम अपने हिसाब से कर लेंगे। इस्कॉन में क्या है? प्रभुपाद जी का ग्रंथ है, ये नियम है, हम तो बाहर भी कर लेंगे। प्रभुपाद जी बोल दिए इस्कॉन मत छोड़ो तो नहीं छोड़ना चाहिए। अरे हम तो योग्य नहीं है। हाँ, अरे योग्य नहीं है तो पड़े रहो, इधर लंगड़ा होके पड़े रहो, कुछ नहीं निकम माओ तो भी पड़े रहो इस्कॉन में। कुछ काम नहीं हो रहा है, हम तो केवल प्रसाद खा रहे हैं और सो रहे हैं, तो प्रसाद खाओ सो जाओ, बाहर मत जाओ। घर पे पड़े रहो। अरे भाई जैसे कोई बोट में अगर सोची पड़ा है और कुछ कर नहीं रहा है तो भी वो कैप्टन सोचेगा कि ये बेचारा नाव में बैठा है, चलो इसको भी उतार देते हैं इधर, हाँ पार करा देगा कि नहीं। हाँ, तो इसलिए आप कुछ कुछ नहीं हो रहा है हमसे, प्रसाद खाओ, प्रभुपा जी का गुणगान करो, प्रणाम करो, ठाकुर जी को प्रणाम तो करो, कम से कम नमस्कार करो। तो इस प्रकार से मनमना भवमत भक्तो मद्याजी मम नमस्कुरु, नमस्कार तो करिए। तो इसलिए ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना चाहिए, इसलिए अनेकों शास्त्र पढ़ने मना किया गया है। अन्य अन्य चीजें पढ़ते हैं, ज्यादा बुद्धि लगाते हैं, पतन हो जाता है। एक हमारे भक्त थे, बहुत पहले की घटना ये, वो सोचे, वो तो प्रवचन देते थे तो आधा संस्कृत बोलते थे आधा हिंदी। और उनके लेक्चर, जब मैं एक दिन बैठा था बॉम्बे में, तो वो सब सर के ऊपर से गया, क्या बोल रहे आधा तो समझ में भी नहीं आ रहा था मुझे। तो मैं बोला ये इनका उद्देश्य क्या है? इसीलिए प्रवचन देना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए। ये तो अपने विद्वता दिखा रहे हैं, तो सब सर के ऊपर जा रहा है, तो क्या ही बैठे। तो मैं उठ के चला गया वहां से, बोले वो समझ में आए तब तो सुने। भाई इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, गुजराती में हो, मराठी में हो, बंगाली में हो, उड़िया में हो तो समझ में आ जाए, तेलुगु में हो। भाई ये संस्कृत में बोलेंगे ऐसे ऐसे भाषा, तो क्या ही समझ में आए हमको। तो नया नया आए थे हम। उसके बाद हम सुने कि वो इस्कॉन छोड़ दिए, ये बोलकर कि हमको रूप गोस्वामी को कट्टरता से फॉलो करना चाहिए, प्रभुपाद जी को जरूरत नहीं फॉलो करना। रूप गोस्वामी जो दिए हम रूपानुग है, ऐसे वो बोल दिए। गुरुजी उनके मना किए, भाई ऐसा मत करो, अपराध है। नहीं नहीं नहीं, वो अपने से बाहर हो गए। बाहर होकर वो सन्यास भी खुद से ले लिए, और खुद से सन्यास भी ले लिए। और सन्यास लेकर बिल्कुल फेसबुक में फोटो डाल दिए, प्रोफाइल फोटो डंडे के साथ। और बाद में खबर आया कि वो 4 माला जप करने वालों को दीक्षा देने लगे, खुद स्वयं सेल्फ मेड गुरु। और उसके बाद हम तो सब भूल गए थे, खैर कई साल के बाद की घटना है। फिर हम एक भक्त से मिलने गए थे, तो बोले प्रभु जी वो जो सन्यास ले लिए थे ना, बोले हाँ। मैं उनका प्रोफाइल फोटो दिखाता हूँ, फेसबुक से निकाले प्रोफाइल फोटो, सूट बूट पहन के, कहीं विदेश का फोटो था। बोले ये लेटेस्ट है पुराना है? बोले लेटेस्ट है, अभी का है। तो मैंने पूछा उनको क्या हो गया, मैसेज किए, तो बोलते क्या करे, करना पड़ता है संसार में ये सब। ऐसे बोला। वो वापस पेंट शर्ट में आके घूम रहा है, बिजनेस कुछ कर रहा होगा काम वाम के। क्यों पतन हो गया? क्योंकि वो ज्यादा बुद्धि लगा दिया। वो सोचा मैं ज्यादा चालाक हूँ प्रभुपा जी से। प्रभुपा जी के टाइम पे की घटना है, एक व्यक्ति बोला मैं तो गोवर्धन में जाके भजन करूंगा, गुफाओं में बैठ के भजन करूंगा, और मैं 108 नाम जप करूंगा। और जाकर 108 नाम जप करने गया, कुछ समय के बाद पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालते हुए दिखा, क्योंकि उसे नहीं हुआ ये सब, तो आया पेट्रोल डाल रहा है। तो कहने का तात्पर्य है, जितना दिया गया है ना, वो सब बिल्कुल सोच समझकर हमारे योग्यता के अनुसार दिया गया है, और शुद्ध चीज दिया गया है। प्रेम भक्ति दिया गया है, ये वैदिक भक्ति है, प्रेम भक्ति भी है। तो हम लोग सुबह सुबह तुलसी आरती में क्या गाते हैं? राधा कृष्ण सेवा पाव, यही अभिलाषी। ये प्रेम भक्ति नहीं है? प्रेम भक्ति है। तो बिल्कुल प्रेम भक्ति ही दिया गया है, बेस्ट चीज दिया गया है। उसको बड़े ध्यान से, यत्न पूर्वक उसको पालन करना चाहिए।
जतने पालन करी, बड़े ध्यान से उसको पालन करना चाहिए। और इन चीजों को पालन करेंगे, मन इन चीजों में लगाना ही तपस्या है। हिरण्यकशिपु की तरह आपको पहाड़ के ऊपर कहीं जाकर तपस्या, मंदराचल में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, 100 साल तक तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपको क्या करना है, जो हम लोग को दे दिया गया है उसी को बड़े ध्यान से, बड़े जतन पूर्वक करना चाहिए। कि बोला गया है ये करना है हमको, प्रभुपाद जी बोले हैं। और देखिए इतना भक्ति के आनंद आएगा, इतना दिव्य आनंद आएगा, आपको लगेगा मुझे वैकुंठ जाने की जरूरत नहीं है, यही वैकुंठ है। प्रभुपाद जी इसलिए कहते हैं इस्कॉन मंदिर वैकुंठ से अलग नहीं है। वैकुंठ है, वैकुंठ हम तो लग नहीं रहा है वैकुंठ है, कैसे लगेगा? वैसे जिएंगे तब तो लगेगा, जैसे कहा गया वैसे जिए जी, वास्तव में वैकुंठ लगेगा। ऐसे उत्साह, ऐसे प्रेम, ऐसे आनंद। और इतना आनंद बढ़ जाएगा कि आप कीर्तन में बिना नाचे रह ही नहीं सकते। कीर्तन में आदमी क्यों नाचता है? क्योंकि वो उसका आनंद वो रोक नहीं पाता है, ज्यादा आनंदित होते ही उछलने लगता है वो। तो इसलिए इन चीजों को पालन करना है। क्या तपस्या हमारे लिए? हमारे लिए यही तपस्या है, गुरु की आज्ञा के अनुसार जीवन जीना। ये तपस्या कैसे हुआ? तपस्या इसलिए है क्योंकि पूरे संसार के लोग उल्टा चल रहे हैं, परिवार के लोग उल्टा चल रहे हैं, हमारे मन भी उल्टा ही चल रहा है। पर गुरु की आज्ञा से हमारे मन को पकड़कर इन कार्यों में लगाना, यही तपस्या है। हमको कष्ट हो रहा है कि अरे ये मन लग नहीं रहा है जप करने में, फिर भी जप में मन लगाना, ये तपस्या है। हमको सुबह उठने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी सुबह उठना, ये तपस्या है। हाँ, हमको पूजा करने में कोई रुचि नहीं है, फिर भी पूजा करना, ये तपस्या है। शास्त्र पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मोबाइल चलाने में बहुत इंटरेस्ट है, फिर भी शास्त्र पढ़ना, ये तपस्या है। ये तपस्या है। इन तपस्याओं को कर लीजिए। तो यहाँ वहां तो हिरण्यकशिपु इतना मेहनत किया, 10,000 साल तक मेहनत किया बेचारा। और मिले कौन आए? ब्रह्मा जी आए। तो ब्रह्मा जी आए तो वर तो दे दिए, बाद में नरसिंह भगवान आए, उनके सारा वर को डिसमिस कर दिया, सारा इंश्योरेंस फेल कर दी। हाँ, प्रभुपाद जी लिखते हैं इस बात को, प्रहलाद महाराज भक्ति किए, भगवान उनको बचाने आए, और वो कोई तपस्या नहीं किए थे। पर यह हिरण्यकशिपु इतना मेहनत किया, 100 साल देवताओं का, यानी 10,000 साल हमारा। इतना मेहनत करने पर भी बेचारा ज्यादा दिन जी नहीं पाया। प्रहलाद महाराज को 5 साल हुआ होगा, वो मर गया बेचारा। बताइए, पूरे तीनों लोक के अधिपति बनने के बाद भी क्या सुख भोग पाया? क्योंकि सब छीन लिए भगवान। भगवान जो है सब छीन लिए, भगवान सबसे बड़े चोर है। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। उनसे बड़े चोर कौन हो सकता है? चौराष्टकम में आता है, कभी गाइएगा। तो भगवान सब छीन लिए उनसे। बोले कि तुम तपस्या मेहनत तो किया, पर मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि तुम भक्त नहीं हो। तो इसलिए भक्तों, प्रभुपद जी एक बात और कहते हैं, इसी प्रसंग में कहते हैं कि वैष्णव जो भक्ति करते करते जिसको भगवत कृपा से भौतिक ऐश्वर्य मिला है, उसको साधारण भौतिक ऐश्वर्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भगवान के द्वारा दिया गया है, गिफ्ट है। और वो उससे उसका पतन नहीं होता है कभी। ऐसे के प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान अगर दिए हैं कोई ऐश्वर्य तो उससे उसको कोई नहीं छीन सकता। बाकी हिरण्यकशिपु की तरह खुद अगर कमाए होंगे तो उसको छीनने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। हाँ, इसलिए तपो दिव्यम पुत्र का है ना, हम इसमें ऋषभ देव कहते 5वां स्कंद में, दिव्य तपस्या करना चाहिए। दिव्य तपस्या क्या है? यही आध्यात्मिक मार्ग जो दिया गया है, इन्हीं आध्यात्मिक कार्य। इसलिए जो गृहस्थ भक्त हैं, उन लोगों को बड़े सावधानी से इस बात को ध्यान रखना चाहिए। हमारे गुरु महाराज जी कहा करते हैं कि हर एक गृहस्थ को सुबह घर में मंगला आरती करना चाहिए, तुलसी आरती करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, गुरु पूजा करना चाहिए। एक एक डिटेल में कहते हैं महाराज जी। क्योंकि डिटेल में नहीं कहेंगे तो कई लोग गड़बड़ कर लेते हैं। हाँ, महाराज जी ने तो केवल कहा मंगला आरती इत्यादि करो, इत्यादि बोल दिया, इत्यादि में क्या आएगा पता नहीं। एक एक चीज को बोलते हैं महाराज जी। और बोलते भोग लगाने का मंत्र बोलते हैं, उसमें भी पूरा मंत्र बोलते हैं महाराज जी। बोले गुरु महाराज जी का, गुरु का 3 बार, प्रभुपा जी का 3 बार, है ना, चैतन्य महाप्रभु का 3 बार, भगवान कृष्ण का 3 बार, जय श्री कृष्ण 3 बार, हरे कृष्ण 3 बार, ऐसे बोलना पड़ता है। नहीं बोलेंगे लोग क्या है, कुछ अलग रास्ता निकाल देंगे। तो बहुत बढ़िया बेस्ट प्रोसेस दिया है। हाँ, और इसको फॉलो करना चाहिए घरों में। मंगल आरती आप करिए, सुबह 4:30 नहीं कर सकते, 5:30 करिए। और पर उसको करिए जरूर। और मंगल आरती करिए, उसके बाद तुलसी आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती सब करिए, शिक्षाष्टकम पढ़िए। कई गृहस्थ भक्त को मैं देखा शिक्षाष्टकम याद ही नहीं होता है। और शिक्षाष्टकम याद क्यों नहीं है? क्योंकि डेली नहीं पढ़ते। 10 नाम अपराध क्या है पता ही नहीं होता, ऐसे नहीं होता है। बस वो तो याद करना ही पड़ेगा। याद कैसे करेंगे? नित्य उसको बोलते रहिए। आप बोलेंगे प्रभु जी बड़ा हड़बड़ी में हम लोग भागते हैं सुबह काम पे, दुकान पे, नहीं होता है। तो जल्दी उठ जाइए, बहुत टाइम मिलेगा आपको।
हाँ, आधा घंटा पहले उठ जाइए, आधे घंटे में तो आपका सब तुलसी आरती, शिक्षा अष्टकम, दशनाम अपराध, वैष्णव पुराणम सब हो जाएगा। हाँ, तो ये क्यों कह रहे हैं कि टाइम नहीं है, ये कहिए कि मैं लेट उठ रहा हूँ, थोड़ा जल्दी उठिए तो खूब टाइम मिलेगा। कभी ऐसे विकट परिस्थिति आ गया कि सुबह उठ के भागना पड़ा, प्रभु जी मंगला आरती हो गया और हम भाग गए, तुलसी आरती सब करके भागे, गुरु पूजा करने के टाइम नहीं मिला। या तो कभी हम ट्रेन में हैं, यात्रा में हैं, प्रभु जी क्या करें, तो गुरु पूजा गा लेना चाहिए, श्री गुरु चरण पद्म गाड़ी में ही गा लेना चाहिए। पर बड़े ईमानदारी से इन चीज़ों को फॉलो कर लेना चाहिए, फॉलो करने से इतना एनर्जी मिलता है, बहुत कृपा मिलता है। और भागवतम तो आजकल ऑनलाइन सुन ही सकते हैं, नित्यम भागवत सेवा हो ही रहा है। हाँ, सब फॉलो करिए, जो मंदिर में चलता है सब फॉलो करिए। संध्या आरती करिए, ऐसा जय जय गोरा चंद ये सब गाइए, शाम को संध्या आरती, फिर नरसिम्हा आरती गाइए। संध्या में भी तुलसी परिक्रमा इत्यादि करना चाहिए, तुलसी जलदान करना चाहिए, सुबह शाम तुलसी महारानी को जल अर्पण करिए। तो इन विधानों को पालन करना, ये सबसे बड़ा तपस्या है हमारे लिए। और आंखों के लिए क्या तपस्या है, श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा दिए हुए ग्रंथों को पढ़ना, ये तपस्या है। मैं आपको और बताऊंगा तपस्या, ये मत समझिए क्लास खत्म हो गया, अब तो स्टार्ट हुआ। तो आंखों के लिए तपस्या क्या है, शास्त्र अध्ययन करना, शास्त्रों को गंभीरता से पढ़ना, श्रीला प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद जी के ग्रंथों को आप पढ़ेंगे, पढ़ न्यूज़पेपर की तरह नहीं कि ऐसे पलट रहा है बस, हाँ प्रभु जी पढ़ तो लिए हम, ऐसा नहीं। हाँ, हमारे गुरु महाराज जी है, तीन चीज बोलते हैं। ये सीक्रेट है ना, भक्ति में प्रगति करने का सीक्रेट क्या है, तीन चीज फॉलो करिए, भक्ति ऐसे रॉकेट की तरह ऊपर बढ़ेंगे। वो क्या है, तीन चीज कहते हैं कि स्ट्रिक्ट मॉर्निंग प्रोग्राम, जो प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग में करने के लिए दिया उसको, घर पे रहो कहीं जंगल में रहो, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। दूसरा, स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडिंग सील प्रभुपाद बुक्स, स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़ना मतलब उसको बड़े गहराई से उसको विचार करते हुए पढ़ना, समझने की प्रयास करना। और तीसरा, फुल्ली एंगेज इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज सर्विसेज, भगवान की सेवा में पूरा व्यस्त रहो। ये तीन चीज जो करता है वो माया के प्रभाव में नहीं आ सकता, माया उससे दूर रहेगी। और इन तीन चीजों में अगर कोई एक भी छोड़ दिए, तब तो माया देवी प्रसन्न हो जाएगी, चलो एक कस्टमर और आ गया। ये तीन चीज में एक भी नहीं छोड़ना है। प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ना छोड़ दिए तो हमारा विचारधारा बदल जाएगा, और धीरे धीरे अंगों को छोड़ देंगे जो हम कर रहे हैं, या तो क्वालिटी लो हो जाएगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा। और अगर दो प्रभुपाद जी की किताब पढ़ रहे हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे हैं, पर सेवा ही नहीं कर रहे हैं, हाँ सेवा नहीं करेंगे तो दास कैसे बनेंगे, तो भी हमारे इंद्रियों को हम संयम नहीं कर सकते। तीनों चीजें बैलेंस करके अगर चलेंगे तो बहुत एनर्जी मिलेगा इसमें, तो माया की प्रभाव से हम बच सकते हैं। मैं भक्तों को हर बार कहता हूँ, प्रतिदिन शाम को सोने से पहले अपने आप को पूछना चाहिए, मैं आज क्या सेवा किया। आज प्रभुपाद जी मुझे सब कुछ दिए, आज उनके जो मिशन है प्रचार, हाँ जो उनके मंदिरें हैं, उनके केंद्र है, मैं क्या सेवा किया, मेरा सेवा क्या है इस्कॉन के लिए। ये प्रतिदिन सोने से पहले पूछना चाहिए कि मैंने आज कुछ सेवा किया, कि आज का दिन मेरा ऐसे ही चला गया। क्योंकि कल के दिन में जीवित रहूं कि नहीं पता नहीं, तो ऐसे सेवा करे बिना अगर मैं चला जाऊं तो क्या, मैं बड़ा दुर्भाग्य रहेगा ये। ऐसे प्रतिदिन कुछ ना कुछ सेवा करना चाहिए, कुछ सेवाएं आप घर पे रह के कर सकते हैं, कुछ सेवाएं मंदिर में आके कर सकते हैं। इस पर कुछ ना कुछ सेवा करना चाहिए, प्रतिदिन सेवा हमारा होना चाहिए। ये एक रहस्य है, तीन चीज जो मैंने बताया। और इसके अलावा और एक बड़ा तपस्या है, वो कौन सा तपस्या है, नाम जप करना। नाम जप करना ये सबसे बड़ा व्रत है, इससे बड़ा व्रत जो है और कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि नाम जप सबसे होता नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना, वो भी 16 माला करना, ये सब नहीं करते। और समय तो सबके पास होता है, अलग अलग कार्यों में समय खराब करते हैं लोग, नाम जप नहीं करते। एक उदाहरण बताता हूँ, एक स्टूडेंट है हमारे, और वो रोज उन्होंने प्रतिज्ञा लिया 2 माला करूंगा। क्यों 2 माला, मैंने उनको हाँ बोला, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। वो बोले सुबह उठते ही व्यस्त हो जाता हूँ, फिर शाम को ये पढ़ाइए, ये है वो है, उन्होंने शेड्यूल बताया। मैंने कहा चलो कुछ नहीं करने से अच्छा है 2 माला कर लो रोज, ये मत छोड़ना, ठीक है। 2 माला कर रहे हैं, क्यों 2 माला कहा गया, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, ठीक है, कारण ये था, स्टूडेंट है इसलिए। अब वो केंद्र में आए, जैसे ही केंद्र में आए और उस दिन छुट्टी था, तो मैंने माला पकड़ा दिया, तो माला करे, 2 माला हो गया, फिर लटका दिए, बोले प्रभु जी सेवा। बोला कि माला करो, प्रभु जी हो गया 2 माला।
भाई तुमको बाकी दिन टाइम नहीं, इसलिए तो माला मना किया, 2 ही माला करने बोला। आज तो आपको पूरा दिन टाइम है, कोई सेवा नहीं दूंगा, बैठ के 16 माला करो। और बैठा हरे कृष्ण हरे कृष्ण, 4 माला करते ही बोला प्रभु जी अब सेवा बताओ मुझे। बोला नहीं, आपको बैठ के यही माला करना है। फिर थोड़ा 1 माला किया, प्रभु जी सेवा बताओ। माला होगा नहीं, है ना, जब तक जो हमारे पाप जो है खत्म नहीं होता है ना, वो पाप वाला बुद्धि रहता है, इंद्र तृप्ति की इच्छा रहता है, भौतिक विचार रहता है, उसमें माला करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए जो व्यक्ति 16 माला कर रहा है, उनको दंडवत प्रणाम करके उनके चरण धो के पीना चाहिए। सही कह रहा हूँ, 16 माला कर रहा है ये। हाँ, 1 करोड़, ऐसे कहते हैं ना, 1 करोड़ अगर राम नाम कोई ले लिया तो उसको बहुत लाभ होगा, ऐसे कई कथाएं कहते हैं लोग। 1 करोड़। हम लोग कितने साल से जप रहे हैं, कितने करोड़ नाम ले रहे हैं, कभी कैलकुलेट किए? 16 माला मतलब कम से कम 27,000 से अधिक नाम ले रहे हैं। 16 माला 27,000, और 1 साल आप 16 माला कर लिए तो कितने नाम होते हैं, कैलकुलेट करिए, बहुत नाम हो जाते हैं। ऐसे जीवन भर करिए तो कितना आनंद आएगा। तो ऐसे नाम करना चाहिए। जो समय एक का दिन, एक दिन, एक दिन, एक एक दिन जो है, एक एक दिन खराब हो रहा है, नाम जप नहीं हो रहा है, वो दरिद्र है, वो सबसे गरीब व्यक्ति वही है, क्योंकि वो अभी तक संपत्ति इकट्ठा किया ही नहीं। नाम रूपी संपत्ति को इकट्ठा करते रहना चाहिए। प्रतिदिन नियमित रूप से नाम जप करिए। ऐसे तामसिक लोग जिनसे हरि नाम जपा नहीं जाता, अगर उनको कोई कह दिया ना 108 बार हनुमान चालीसा बोलो, तो तुमको बहुत संपत्ति मिलेगा, तुमको नौकरी मिल जाएगा, तुमको ये मिल जाएगा, अच्छा तुमको संपत्ति मिलेगा। वो बैठ के कर लेगा वो 108 बार। हाँ, उसको बोलेगे आप ये वाले मंत्र जपो, आधी रात को उठ के ये देवी का मंत्र जपो, तुमको ये मिलेगा, तुम्हें सारी इच्छा पूरा हो जाएंगी। वो जपेगा वो। तमोगुणी लोग का स्वभाव है ऐसे चीजों को करने में, भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ कहो तो तुरंत दौड़ेंगे। पर आध्यात्मिक प्रगति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए आप बैठ के नाम जप करो, नहीं होगा। और चलो कई लोग माला ले भी लेते हाथ में, जप करते हैं, पर वो जप ऐसे करते हैं कि ध्यान बिल्कुल हरे कृष्ण महामंत्र पे नहीं होता है। पूरे 16 माला हो गया, उनको पता ही नहीं चला, अरे 16 माला हो गया, ये तो पता ही नहीं चला, बहुत बढ़िया आनंद आ गया, ऐसे बोलते। भाई पता नहीं चला, इसका मतलब ये है कि आपका ध्यान माला में था ही नहीं। 16 माला गया, वो एक एक काउंटर ऊपर की, अरे जो चल रहा है कुछ सोच रहे 2 घंटा तक, हाँ, या 2 घंटा तक मोबाइल चला रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, 16 वाला हो गया, प्रभु जी आज तो पता ही नहीं चला 16 वाला कैसे हुआ। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आपको पता नहीं चला, आपको पता चलना चाहिए कि आप माला कर रहे हो। ऐसा नहीं माला कर रहे हो पता ही नहीं चला आपको, ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान से जप करना चाहिए। कई लोग मंत्र इतना फास्ट बोलते हैं कि पूरे मंत्र को बोल भी नहीं पाते। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, है ना, अरे ये मंत्र जपो। भगवान बोलेंगे भाई परेशान मत करो ढंग से जपो, अगर बुला रहे हो तो पूरे नाम तो लो कम से कम। कृष्ण राम कोई कोई वैदिक मंत्र थोड़ी दे रहे हैं कि भाई उच्चारण करने में मिस्टेक हो रहा है। जब वो सिंपल सरल नाम दिया गया है, और उस नाम को भी ऐसे तोड़ मरोड़ करते हैं, उसको वो ढंग से उसको उच्चारण ही नहीं कर पाते। किसी को गाली देने के लिए बोलो तो शुद्ध गाली देंगे बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, एक भी उसमें मिस्टेक नहीं होगा। और नाम जप करने बोलो तो हरबल हरबल कैसे कैसे जपते हैं, इतने फास्ट करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम, हरे कृष्ण। फास्ट करना चाहिए, आइंद्र वो कहते हैं कि जितना फास्ट करेंगे उतना मन को आप पकड़ सकते हैं। पर वो मंत्र पे आपका पकड़ होनी चाहिए, मतलब आपका अभ्यास होनी चाहिए। धीरे धीरे करते करते उसको अभ्यास बना के आप स्पीड करो तो पूरे मंत्र आप बोल सकते हैं। और सीधा हड़बड़ी में जपेंगे, हरे कृष्ण जपेंगे, तो मंत्र ही नहीं बोलेंगे तो कैसे होगा। और ये मिस्टेक क्यों होता है? क्योंकि हम सुनते नहीं है मंत्र को। मंत्र जप का सबसे बड़ा फॉर्मूला है उसको सुनना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे सुनना चाहिए। पर हम लोग कई बार लीलाओं में खो जाते हैं, भगवान की लीलाएं विचार करने लगते हैं, कई बार फोटो सामने रख देते हैं, देखते रहते हैं, कई बार प्रभुपाद जी का ऑडियो लगा देते हैं। दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मंत्र दिया गया सुनने के लिए। प्रभुपाद जी का हरे कृष्णा चलाइए, दूसरे जब खाली बैठे हैं तो तब चलाइए, जब आप ड्राइविंग करते हैं तब चलाइए, जब आप वो कुछ भोजन कर रहे हैं तब हरे कृष्णा सुनते हैं। दिन भर सुनिए प्रभुपाद जी का। और जब करते वक्त केवल आप अपना मंत्र को सुनिए। इसलिए आपको कहा गया है श्रवण करो, कीर्तनम श्रवणम दोनों होना चाहिए। तो महामंत्र को जो कर्ण से, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन, ये कान से जब महामंत्र को अंदर जाने देगा, उसी का ही हृदय निर्मल होगा। मंत्र ही नहीं सुनेगा तो निर्मल नहीं होगा। अब जैसे आपके घर पे मैं गया, ठीक है,
और आप, मैं बैठा हूँ घर पे, आप बिठा दिए और आप अपना काम कर रहे हैं, 2 घंटा हो गया मुझे ध्यान ही नहीं दी, तो मुझे क्या लगेगा? चला जाना ही ठीक रहेगा। इसको तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो बुला तो लिया आप और ध्यान ही नहीं दे रहे। वैसे हम हरे कृष्णा बोलते ही शिव राधा कृष्ण आ तो जाते हैं, पर हमारा ध्यान वो हरे कृष्ण मंत्र पे है ही नहीं, कुछ और पे ही ध्यान है। तो बोलेंगे ये बुला तो लिया, ध्यान तो दे नहीं रहा है, इसलिए नाम में रुचि खत्म हो जाता है। फिर मंत्र भी छोड़ देते लोग कई बार, और करते हैं तो ऐसे ही फॉर्मेलिटी करते हैं। नाम जप यानी नाम की श्रवण, जप श्रवण, और इतना मरमरिंग करिए जितने में आप ही सुन सकते हो। जोर जोर से करना हो तो कीर्तन करिए, और बिल्कुल मन में करना खतरा है। क्यों? बिल्कुल मन में हरिदास ठाकुर कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। मन तो ऐसे ही चंचल है, और मन में करने के लिए नाम जब अगर ठान लिए, तो नाम के बदले कुछ और ही चलता रहेगा मन में। इसलिए बेस्ट क्या है, जब करने का बेस्ट तरीका क्या है? मरमरिंग करो, यानी आप और सुनो, बस आप बोलिए आप सुनिए, इतना तक आपका होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कम से कम 7 मिनट, 6 से 7 मिनट लगना चाहिए। बहुत कम लग गया टाइम तो भी खतरा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो भी अच्छा नहीं है। इसलिए मिनिमम टाइम, एवरेज टाइम होना चाहिए, 6-7 मिनट एवरेज टाइम होना चाहिए। कई बार व्यक्ति ज़्यादा माला करता है, माला में बिल्कुल ध्यान हो गया है, तो उसका धीरे धीरे मिनट्स कम हो सकते हैं, 5 मिनट तक आ सकते हैं। पर वो ज़्यादा करने से, माला जैसे आप एकादशी 64 माला कर रहे हैं और बिल्कुल मंत्र पे ही ध्यान है, तो आप बिल्कुल स्पष्ट उच्चारण करते हुए स्पीड थोड़ा बढ़ा सकते हैं। बट इन जनरली आपको 7 मिनट लगना चाहिए। और बिल्कुल 15 मिनट लग रहा है प्रभु जी माला में, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, आप बोलेंगे प्रभु जी माला तो मेरा 2 मिनट में हो रहा है। तो 2 मिनट में पता है किसका हो जाता होगा? 1 मिनट 2 मिनट में जो एक मणि में एक ही नाम लेता हो, हरे कृष्णा, एक मणि पीछे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसे तो भाई हम तो 1,000 नाम भी जप कर सकते हैं। ऐसे नहीं होता है ना? आपको एक मणि पे पूरा मंत्र स्पष्ट बोलना है। ये महामंत्र है, सबसे बड़ा तपस्या है। मन को पकड़कर महामंत्र पे लगाना, ये रोज का ड्यूटी है हमारा, और रोज ये तपस्या हमको करना चाहिए। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम, ततो ततो नियम एतद आत्मन्नेव बसम नयेत। जब जब मन चंचल होके भागता है, गीता में ठाकुर जी कहते हैं, तब तब मन को पकड़ के वापस बस में करना चाहिए। हाँ, गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। भगवत गीता हम नहीं पढ़ेंगे तो भगवान क्या कहना चाहते हैं हमको नहीं समझ में आएगा। मन के बारे में ठाकुर जी कहते हैं, जब भी मन भागता है पकड़ के फिर मंत्र में लगा दो। ये मन है, कभी आकाश में उड़ेगा, कभी ब्रह्मलोक में पहुंच जाएगा, तो कब अमेरिका में पहुंच जाएगा, ये मन की कोई ठिकाना नहीं, वो कहाँ जाता है। पर मन जहां गया, हमको उसके पीछे भागना नहीं, उसको पकड़ के हमारे पास लेके आना है। भाई हमको ये करना है। हे मन, हे दुष्ट मन, इसलिए कहते हैं मन को सुबह उठ के झाड़ू से पीटना चाहिए। क्यों पीटना चाहिए? उसका अर्थ क्या है? कि मन, वही करो जो मैं कह रहा हूं, आप वही करो, आप अपने हिसाब से कुछ मत किया करो। इस प्रकार से। तो ये है नाम जप, ये एक तपस्या है। उससे भी बड़ा एक तपस्या है, वो सबको करना चाहिए। नया नया आते हैं तो ये सिखा देते हैं। क्या तपस्या है? पूरे संसार जिस दिशा में जा रहा है, मांसाहार, नशा, जुआ, व्यभिचार, पूरी दुनिया उस दिशा में जा रहा है। पर इस्कॉन में आते ही नियम क्या कह देते हैं? इसका उल्टा जाओ। रास्ता तो सीधा यही है, लोग उल्टा जा रहे हैं, पर हम जो उस दिशा में है तो हमको उल्टा करना पड़ेगा अपना। वो क्या है? 4 नियमों के पालन करना, मांसाहार नहीं करना। मांसाहार तो नहीं करेंगे, ठीक है, तो प्याज लहसुन भी नहीं खाना। तो कई लोग बोलते हैं प्रभु जी क्या करें, बच्चे मानते नहीं। एक सब कॉमन डायलॉग है, हम सुन सुन के रखे हैं ये सब, इसलिए कह रहे। ये जनरली लोग कहते प्रभु जी हम तो छोड़ना चाहते, बच्चे नहीं मानते। बच्चे के प्लेट में अगर अच्छा आप कुछ दे रहे खाने के लिए, तो बच्चे थोड़ी बोलेंगे प्याज लहसुन डाला है कि नहीं। आप बनाते हैं आलू टमाटर झोल बना दिए, पानी में ढूंढते रहो आलू कहाँ है। खाओ रोटी। हाँ, कभी बोलोगे अचार दे दोगे, बोलोगे रोटी अचार खाओ, तो खाएगा ही, प्याज लहसुन मांगेगा ही, दो और दो प्याज लहसुन अच्छा दो। आप ढंग से बनाओ। आप कभी राजभोग खाए? आप कभी कोई इस्कॉन मंदिर के, आप राजभोग खाइए, वो व्यक्ति दूसरा को छुएगा नहीं दिन भर, शाम तो कुछ नहीं खाएगा वो। इतना बढ़िया बनता है, इतने इतने व्यंजन बनते हैं, कितना बढ़िया बनता है। भाई आप ढंग से बनाएंगे नहीं, और आप बोलेंगे, बच्चे बोलते, बच्चे बाहर से मंगा लेते हैं, क्या करें प्रभु जी, बच्चे हैं खा लेते हैं बाहर। हमारा जब शांत नरसिंहपुर इंटरव्यू ले रहे थे गंगापुर में, दीक्षा का इंटरव्यू, उसमें हमारे एक प्रभु जी को यही पूछते हैं
कि आपके बच्चे बाहर खाते हैं क्या? हाँ प्रभु जी, कभी कभी खा लेते हैं। तो बोलते हैं कि आपको दीक्षा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चों को ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो। आपका कर्तव्य है, पिता पिता हो, आपका कर्तव्य है आपको उनको रोकना है पाप कर्म करने से। ये आप नहीं कर रहे हो, ऐसे बोल दिए। और सही बात है, माता पिता का कर्तव्य है बच्चों को सिखाना। जब छोटे हैं तभी सिखा सकते हैं। वो बड़े हो गए तो क्या सिखाएंगे? वो सुनेंगे नहीं आपका। जब आपसे दूर हो गए वो नहीं सुनेंगे। तो इसलिए जब तक आपके पास है तब तक सिखाना आपका कर्तव्य है। अगर वो नहीं सुन रहा है, ये आपका गलती है, क्यों नहीं सुन रहा है? बच्चा क्यों नहीं सुनेगा आप सुनाएंगे तो? अगर व्यक्ति 20 साल के नीचे है और आप उसको डांट के जो नियम बोलेंगे वो नियम करेगा, पर आपके तरीका ठीक नहीं है या आप चाहते नहीं है, तो फिर वो अलग बात है। तो उसके पाप का आधा आपको मिलेगा, आधा उसको मिलेगा। पाप की भागीदारी आप भी है, क्योंकि आपने शिक्षा नहीं दिया। आप शिक्षा दिए। कई माता पिता देखता हूँ बच्चों को इतना बढ़िया ट्रेनिंग देते हैं। हाँ, बचपन से छोटे छोटे बच्चे, उनको नाम जब फिक्स है, नाम जब नहीं तो प्रसाद नहीं। और वो ठाकुर जी को प्रणाम करना सिखाते हैं, भोग लगाना सिखाते हैं, उनका रूटीन रहता है। एक दिन बेटा भोग लगाएगा तो एक दिन बेटी भोग लगाएगी। एक दिन ये मंगल आरती करेगा तो एक दिन वो मंगल आरती, एक दिन ये तुलसी आरती करेगा तो एक दिन तुलसी आरती। ऐसे ऐसे है। तो कितना अच्छा लगता है ये सुनकर, बिल्कुल ट्रेंड बच्चे होते हैं। और वो भक्तों को देख के इतने आनंदित हो जाते हैं। एक बार भी एक कुछ बच्चे आए थे बाहर से। हाँ, उधर फिर वो गोवर्धन में मिले वो बच्चे। हाँ, वो 10 साल पहले मुझे मिले थे, तो बड़े हो गए, अभी लगभग 15 साल के हो गए। फिर भी वो देखकर ऐसे उछल के नाचने लगे कि मानो कोई भगवान ही आ गए हो। ऐसे इतना उत्साह क्यों है? क्योंकि वो भक्ति करते हैं। भक्ति नहीं करने वाले बच्चे कैसे ऐसे देखेंगे जैसे कोई एलियन आ गया? कोई लेना देना नहीं भक्तों से, क्योंकि भक्ति कर ही नहीं रहे। तो इसलिए हम लोगों को बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहिए। वो बच्चे पाप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप घर पे इतना व्यंजन खिलाओ कि वो बाहर देखेंगे, उनको दया आना चाहिए। ये लोग गंदगी में कैसे पानी पूरी खा रहे हैं, ये कैसे चॉकलेट खा रहे हैं, इसमें तो हड्डियों का पाउडर होता है सब। हाँ, ये कैसे नॉनवेज खा रहे हैं, ये कैसे बाहर कहीं भी होटलों में कहीं भी खड़े खड़े खा लेते हैं। ये आदमी नहाया नहीं है, इतना गंदी तरीके से कोई भी पानी यूज कर लेता है। वो जो बाल्टी में वो नहाने जाते हैं उसी जग बाल्टी सब यूज कर रहा है, बिना हाथ धोए यहाँ वहाँ खुजला के फिर पानी पूरी के पानी में हाथ घुमा देता है। ये कैसे खा रहे हैं? वही तेल में कई दिनों से तल तल के वो तेल गंदा हो गया है। सड़क में दुकान होने की वजह से पूरा दिन धूल जाता है उसके अंदर। कैसे खा रहे? बच्चों को दया आनी चाहिए दूसरे पे। इतना खिला दो घर पे। पर दुर्भाग्य है कि हम लोग ये सब नहीं करते हैं, इतने आलसी हैं। जो माताएं ये कहते हैं ना हमको टाइम नहीं है इसलिए बच्चों को नहीं खिला पाते हैं, भाई काम क्या है और बताइए। जब आप बच्चों को खिला ही नहीं सकते तो और किस काम पे बिजी है? और आपका दूसरे काम में व्यस्त रहना भी व्यर्थता है अगर आप बच्चों को ही नहीं खिला रहे। यशोदा मैया कृष्ण भगवान के लिए क्या बनाते थे वो लिस्ट पढ़िए आप। हाँ, आप पढ़िए, आप कई ग्रंथों में, भागवतम में, गोपाल चंपू ग्रंथ में है, अलग अलग जगह क्या क्या बनाते थे, खुद बनाते थे वो। उनको हेल्प करने भले ही कोई लोग आते, पर वो बहुत सारे व्यंजन मेहनत करके बनाते। मेरे कृष्ण को ये अच्छा नहीं लगा तो ये खाएगा, ये अच्छा नहीं लगा तो ये खाएगा। आप बोलेंगे ठाकुर जी है इसलिए 56 भोग लगता होगा। अरे यशोदा मैया को थोड़ी पता है कि वो ठाकुर जी है। उनके लिए तो वो बच्चा ही है उनका, कि मेरे बच्चा को ये सब वैरायटी होनी चाहिए। अब पटक दिया। आज मैं कई भक्तों को फोन करके पूछता हूँ, और बच्चा क्या खाया आज? बोलता पूजी रोटी और नमकीन। फिर दोपहर को किसी को पूछा, अरे क्या खाया आज? प्रभु जी आज केवल आलू टमाटर की सब्जी और रोटी। यही भगवान ने इतने वैरायटी सब्जियां दिए हैं, इतने वैरायटी व्यंजन दिए हैं। ये सब क्या दुकानों में बेचने के लिए केवल बना हुआ है? ये सब घर पे क्यों नहीं बनाते? आप बोले प्रभु जी इतना टाइम कौन खराब करेगा? इतना टाइम, ऐसे ऐसे कुक माताजियों को मैं जानता हूँ जो 1 घंटे के अंदर आपका कई आइटम बना देंगे। 1 घंटे के अंदर। अगर आपको बनाने की तीव्र इच्छा है तो आपका बुद्धि और हाथ ऐसे ही चलेंगे, फटाफट हो जाएंगे। हम देखो, हम कई भक्तों का ये पुष्पलता माता जी भी देखिए सिलवास हम। वो तो मैं आधा 1 घंटा पहले बोलता था कि आज हम आ रहे हैं प्रसाद लेने, भक्त लोग आ रहे हैं, आज प्रोग्राम है तो आपके वहाँ प्रसाद लेंगे, 1 घंटे पहले बोलते थे। और ये इतने सारे व्यंजन बना देते थे। कई ऐसे भक्त लोग हैं, फटाफट बनाने की इच्छा होनी चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ भक्तों कि ये आप बच्चों को ऐसे खिलाएंगे तो बाहर खाने की नौबत नहीं आएगा। जिसका पेट भर गया है, मन संतुष्ट हो गया, प्रसन्न हो गया, और शुद्ध प्रसाद खाकर जिसका चित्त शुद्ध हो गया, वो बच्चा क्यों यहाँ वहाँ कचरा पट्टी खाएगा? सब नहीं खाएगा। अरे ठीक है, चिप्स है खा नहीं दो। कई बार ट्रैवल करते हैं तो पैकेट खरीद के दे देते हैं, टेंशन फ्री, रो रहा है लो ले पैकेट खा ले। आप टिफिन लेके क्यों नहीं गए? घर पे बना के पैक करके क्यों लेके नहीं गए? आपको पता होना चाहिए कि इसको भूख लगेगा इस टाइम पे। आप पानी क्यों पैक करके नहीं लेके गए?
कुछ नहीं, तैयारी नहीं, कुछ नहीं, चले गए भौतिकवादियों की तरह, दुकान से खरीद के दे दिए। पूछे बच्चा है रो रहा है क्या करें? आपको रो रहा है पहले ही पता होना चाहिए कि रोएगा इस टाइम पे। हाँ, दिन में 3 बार खाएगा, 4 बार खाएगा, चारों बार पैक करके लेके जाओ। ऐसे होना चाहिए। पर ऐसे हम लोग अपने बुद्धि को प्रयोग नहीं करते हैं तो लोग बाहर खाते हैं। इसलिए प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। बाहर की चीजें खाना ही नहीं चाहिए। आप घर पे बनाओ, सब कुछ बन जाता है आजकल। ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं बन सकते, जो आप चाहते हैं वो भी बन सकता है सब। और चाय वगैरह भी नहीं पीना चाहिए। जो खाली भक्त जो है तो नहीं पीते होंगे, जो भक्त बनने के प्रयास कर रहे हैं उनके लिए हम लोग कह रहे हैं कि कम से कम चाय छोड़ दीजिए। तंबाकू खा रहे हैं तो छोड़ दीजिए, गुटखा खा रहे हैं तो छोड़ दीजिए। ये सब चीजें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये लगता है कि इसके बिना नहीं चलेगा गाड़ी। अब मेरे को एक सज्जन को पूछ रहा था कि वो 16 मला कर रहे हैं पर वो तंबाकू खा रहे हैं। हाँ, लगभग 1-2 साल हो गए 16 मला कर रहे हैं पर वो तंबाकू नहीं छुट पा रहा है। वो बोल रहे हैं कि प्रभु जी अब ऐसा है कि हमारा एक रिश्तेदार था, तंबाकू छुड़वा दिए तो मर गया जल्दी वो। मुझे डर लग रहा है कि मैं तंबाकू छोड़ के मर ना जाऊं। मैंने वो कहा कि तंबाकू हानिकारक है या तंबाकू छोड़ना हानिकारक है? ये मन में भ्रम है आपका कि इसके बिना नहीं जी पाओगे, इसको छोड़िए, माला करिए, सब ठीक हो जाएगा। तो इसलिए शुद्ध आहार ये भी एक नियम है, इसको नहीं करेंगे तो फिर भुगतेंगे। क्योंकि भक्तों, भोजन के साथ पाप भी आता है। इसलिए अभक्तों के हाथ से नहीं खाना है। आज भक्ति रसवान सिंधु में सुबह सुबह पढ़ रहा था, नेक्टर ऑफ डिवोशन शिल प्रभुपाद जी का। इसमें बहुत सुंदर कहा गया है, अभक्तों को देख कर पूजा नहीं करना चाहिए। कोई आप डीटी वर्शिप कर रहे हो, अभक्त आ गया आपके घर पे, तो नहीं करना चाहिए, उसको बाहर बिठाना चाहिए नहीं तो। और अभक्तों के हाथ से तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। असत्संग त्याग, अभक्त भक्त नहीं है कोई भी रिश्तेदार हो, दूर रहो उससे। उतना ही व्यवहार रखो जितना आवश्यकता है। और शुद्ध तरीके से भोजन बनाइए, स्नान करके भोजन बनाइए। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, जो खास करके गृहस्थ वक्त घर पे रहते हैं, शुद्धता की पूरा ध्यान देना चाहिए। ऐसे ऐसे गृहस्थों को मैं देखा हूँ कि ऐसे उच्च कोटि के शुद्धता पालन करते हैं कि वो लगते ही नहीं कि इस संसार के हैं। बिल्कुल शुद्धता। उनके किचन में एक बॉम्बे में एक माता जी थी, अब हैं कि नहीं पता नहीं, बहुत वृद्ध हो गए थे उस टाइम पे, उड़ीसा के ही थे वो। तो हमारे एक सीनियर ब्रह्मचारी, उस टाइम पे मैं नया नया आया था, उस टाइम पे मुझे लेके गए थे किसी घर पे। वो माता जी जो है, इतना शुद्धता पालन कर रही थी वो कि हम लोग को भी किचन में नहीं जाने दिए। उनके मन में ऐसे बैठा हुआ था। भक्तों को वो बोलते कि जो बिल्कुल शुद्ध वस्त्र पहना है, स्नान कर लिया है, धुले हुए कपड़े पहना है, वही किचन में जा सकता है। जबकि हम लोग शुद्ध रहते ही सुबह उठ के पूरा भक्ति इत्यादि करते, पर उनके ध्यान में ये था कि किचन मतलब बिल्कुल प्योरिटी होना चाहिए, किसी को आपको चाहिए हम बाहर ले आएंगे। ऐसे उनके मन में बैठा था, ऐसे शुद्धता का स्टैंडर्ड होना चाहिए। आजकल तो मैं तो यहाँ तक सुन के आश्चर्य हो गया कि शौच क्रिया करके बिना स्नान किए लोग कुकिंग कर लेते हैं, भोग भी लगा देते हैं। और जब हम बोलते हैं ऐसे मत करो, बोलते हैं भगवान तो भावग्राही जनार्दन है, भाव देखते हैं। भाई इतना भाव है तो स्नान कर लो, ठंडे पानी से नहा लो, सर्दी चल रही है फिर भी नहीं, हमारा भाव उतना ही है। बिना नहा के भोग बनाना, भोग लगाना, यही भाव है हमारा। तो ये भाव स्वीकार करेंगे भगवान? ये कोई भावना? ये तो दुर्योधन की भावना है। जैसे दुर्योधन भोग लगा रहा, भोग लगाने के लिए वो 56 भोग खिलाने बुलाया ना, वो भावना है। बिना स्नान किए किचन नहीं जाना है, कभी नहीं, भोग तो बन ही नहीं सकता। शौच क्रिया करो, पूरे वस्त्र धुलने चाहिए आपके, दूसरे आप शुद्ध धुले हुए कपड़े पहन के भोग बनाओ। अगर वस्त्र धुले हुए पहन लिए पर आपको कुछ मार्केट जाना पड़ा, अगर चल के वापस घूम के आ रहे हो तो वो भी चेंज करना चाहिए हमको। नहीं, आप बाहर घूम के आ रहे हो तो उसमें आप कुकिंग नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे शुद्धता होनी चाहिए। यहाँ वहां छू लिए, मोबाइल छू लिए, कभी खुजला दिए, ऐसे किए, हाथ तुरंत धो लेना चाहिए। अगर आपका ज्यादा पसीना आ रहा है, सेवा करते करते पसीना लास्ट में आ जाता है, वो अलग है, बाद में सेवा खत्म हो गई, अब चेंज कर लो। पर आपका पहले ही आप सेवा आधे घंटे बाद है और आधा घंटा पहले आप कपड़े पहन लिए धुले हुए और आपका पसीना आ गया, तो कपड़ा चेंज करना चाहिए, स्नान करना चाहिए वापस। ये प्योरिटी स्टैंडर्ड है। हाँ, इतना स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे तो मन शुद्ध होगा। कोई स्टैंडर्ड नहीं। सुबह उठ के आगे मंगल आरती तक बिना नहाए आ जाते कई लोग, आश्चर्य की बात है, मंदिरों में भी स्नान नहीं की सीधा मंगल आरती आ गई। एक हमारे सिलवासा में एक व्यक्ति, मुझे याद है, मैं शाम को अनाउंस किया कि कल सुबह सब मंगल आरती आई है, संडे है। तो एक व्यक्ति आके मुझे पूछ रहा है, प्रभु जी नहा के आना है ना? मैं अभी हाँ बोलूं या ना बोलूं, मैं तो आश्चर्य हो गया, ये प्रश्न है, वो भी भारत में लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि स्नान करके मंगल आरती आना है। हाँ, तो ऐसे लोगों को पता ही नहीं है।
शौच क्रिया के वही पेंट में घूम रहे हैं, वही कपड़े में घूम रहे हैं, कोई स्नान नहीं, ब्रश करते हुए घर में घूम रहे हैं, नाखून काट के घूम रहे हैं, बाल काट के आके भी घूम रहे हैं, स्मशान में जाके आके भी घूम रहे हैं। यही भी नियम आज मैं भक्ति रसायन क्षेत्र में सुबह पढ़ रहा था। ये नियम एक शायद कल बताऊंगा आप लोगों को, कि आपको अगर कोई डेड बॉडी को देख लिया, आप पूजा में नहीं जा सकते बिना स्नान किए। आप अगर स्मशान में गए, वो तब तक चंडाल रहेगा जब तक वो व्यक्ति स्नान नहीं करता, कपड़े के साथ किसी वस्तु को नहीं छू सकता हो। हाँ, ऐसे अगर सोचिए आप कहीं से गुजर रहे हैं और अगर स्मशान का धुआं भी लग गया, तो भी आपको स्नान करना चाहिए, नहीं तो तब तक वो चंडाल रहता है। शरीर में तेल लगा दिया तो उसको स्नान तुरंत करना चाहिए, अगर तेल लगा के स्नान नहीं किया तो कोई काम नहीं कर सकता, वो भी चंडाल है। ये स्पष्ट लिखा गया है, तेल लगाने के बाद स्नान अगर नहीं किया वो तब तक चंडाल रहता है। और सब चंडाल बन के घूम रहे हैं, तेल लगा दिया, नहाने के बाद तेल लगाने का एक ट्रेंड चल रहा है आजकल। नहा लिया, तेल लगा लिया, सर्दी चल रही है भाई, हाथ पैर सूख रहा है, लगा दो तेल और घूमो। मंदिर में भी आ जाते हैं, घर में भोग भी बना देते हैं। ये प्योरिटी है। ये नियमों को कठोरता से पालन करना चाहिए हमको। तेल लगाओ फिर स्नान करो, ये सब कॉमन सेंस है। ये मैं गांव में कभी किसी को नहीं देखा कि स्नान करके कोई तेल लगा रहा है। मैं सब लोगों को बचपन से देखा हूँ, वो स्नान करने के जब तालाब में जाते थे, हाँ, वो पूरा तेल शरीर में लगा के, सर पे लगा के फिर जाके स्नान करते थे, वो आके कोई नहीं छूता था कोई तेल को। ये सब साधारण चीजें जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। और शौच, हम छोटे छोटे बच्चे थे तब भी जब जाते थे शौच क्रिया करने, जब तक वो कपड़े धुले हुए नहीं दिखेंगे या जब तक स्नान करके तालाब से नहीं आएंगे, वो माँ अंदर घर में घुसने नहीं देती थी। बाहर बाहर वो स्नान करके आओ तालाब में जाके। वो भले ही वो मिडनाइट हो या वो कितना भी टाइम हो, बिना नहाए वो अंदर आ ही नहीं सकते, नियम था। ऐसे नियम होना चाहिए। तो इसलिए ये सब शुद्धता का चीजें हैं, बहुत सावधानी से। और किचन में खास करके कई गृहस्थों को ये पता नहीं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। घर में अगर किचन में आपके पास जैसे छोटा घर है और एक ही वॉश बेसिन है जिसमें आप बर्तन धोते हैं, तो कृपा करके अगर ऐसी मजबूरी है, अगर आपके पास पैसे हैं तो दूसरा आप वॉश बेसिन बनाइए जिसमें हम अपने झूठे प्लेटों को धो सकते हैं जो हम खाते हैं। धुल गया तो वो झूठा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो बर्तन हम यूज करते हैं वो सब झूठा ही माना जाता है। उसको अलग रखिए, अलग धोइए। और आप जिस बर्तन में कुकिंग करते हैं, जिस चम्मच में आप कुकिंग के लिए यूज करते हैं, वो प्लेट को टच किए बिना डालिए। ये जनरली ये आदत होना चाहिए। और आप कैसे मजबूरी है, छोटा घर है, ऐसे स्थान में हम रहते हैं, दूसरा कुछ कर नहीं सकते, रेंट पे हैं, ऐसा कुछ है, तो कृपा करके उसी बेसिन में आप अलग साबुन के दो अलग अलग रखिए, भगवान के लिए अलग, आपके खाने के प्लेट के लिए अलग। और पहले आपका धो लिए, फिर बेसिन को धो के फिर ठाकुर जी का आप धोइए, अगर मजबूरी है तो ऐसे करिए। एक साथ में ठाकुर जी की, ठाकुर जी के मतलब केवल भोग का प्लेट नहीं, ठाकुर जी का मतलब आपकी कुकिंग करने के हर एक प्लेट, जिसके भी कुकिंग करके आप भोग लगाते हो, केवल आपके भोजन के प्लेट, ग्लास, कटोरी बिल्कुल अलग, उसका सिस्टम ही अलग रखिए। भगवान का प्लेट डालिए, उसको धोइए साबुन से अच्छे से। हाँ, फिर उसको अलग करके फिर आप अपना धो सकते हैं। वहीं भगवान के पड़े हैं, वहीं आपका पड़े हैं, वही उसी ग्लास को पी लेते हैं, उसी मुंह लगा कर पी लिए, और उसी ग्लास में हमको पानी भी पिला देते हैं कि मैं लो लो पानी पियो। इसलिए मैं सबके घर पे पानी नहीं पीता हूँ मैं, क्यों? क्योंकि वो वही उसी ग्लास में दे देते हैं। हम्म। एक भक्त तो हमारे रथ यात्रा हो रहा था बॉम्बे में, हाँ, शुद्ध से वो प्रभु आप कुछ दिन पहले कार्तिक में क्लास दिए थे ना, वो प्रभु जी के साथ हम लोग नाच रहे थे कीर्तन में, इतने नाच रहे थे कि बिल्कुल पसीना बह रहा था। प्रभु जी का ज्यादा नृत्य करते हैं तो ज्यादा पसीना बह रहा था। अब वो पसीना देखकर एक गृहस्थ व्यक्ति, वो भी नाच रहा था, वो पसीना उसका हो गया तो अपने छोटे से एक नेपकिन था उससे पोंछ पोंछ के रखा था, और बड़े प्रसन्न होकर प्रभु जी को उसी कपड़े से प्रभु जी का चेहरा भी पोंछने लगा। मैं बोला रुको रुको, क्या कर रहे हो? अरे प्रभु जी का पसीना आ रहा है, पोंछ तो लो। अरे भाई, थोड़ा बुद्धि है कि नहीं तुम्हारे अंदर? तो खुद भी पोंछ रहे हो उसी से ही, और उसी से उसी पसीना से प्रभु जी का पोंछोगे? इतना प्रेम है तो दूसरा नया ला के दो। मार्केट के अंदर से तो जा रहा है रथ यात्रा, कितने दुकान है यहाँ पर। ऐसा नहीं, लोगों के अंदर साधारण ज्ञान भी, कलयुग में इतना बुद्धि भ्रष्ट हो गया है कि साधारण चीजें भी उनको पता नहीं, साधारण चीजें भी पता नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग अशुद्ध रहेंगे तो क्या भक्त बनेंगे? बिल्कुल शुद्धता रहना चाहिए। आपको कोई बड़े बड़े कार्य करना नहीं कह रहे, ये छोटे छोटे मिनिमम चीजें तो फॉलो करना चाहिए। चेतना को शुद्ध रखना है, भोग लगाना है, भगवान को खिलाना है, तो शुद्धता तो जरूरी है। बिना शुद्धता का तो हमारे गुरु महाराज जी भी, अगर एक बार एक भक्त जो है न्यूज़पेपर पकड़ लिए थे, पुजारी थे, ब्राह्मण दीक्षित थे, पर वो न्यूज़पेपर यहाँ से यहाँ रख दिए होंगे उठा के, तो केवल वो पेपर पकड़ लिए थे। बाद में जैसे ही ठाकुर जी की सेवा में आए तो गुरु महाराज डांट दिए, और सीधा सीधा बोले तुम बहुत गंदे हो, ऐसे शब्द से बोले। वो बोला महाराज जी अभी तो स्नान करके तिलक लगा के आया हूँ। तो महाराज जी के सेक्रेटरी जो थे वो बोले कि तुम न्यूज़पेपर छुए थे ना।
तो कोई लाके न्यूज़पेपर उधर रखा था, वो छुआ होगा, वो पेपर पेपर वाले स्टेशन में पटक के रखते, उसको गिनते हैं बिना नहाए। वो कहाँ कहाँ घूम के आया है। लोग मतलब उसी न्यूज़पेपर को रोटी में भी रख देते, रोटी पूड़ी रखने के लिए न्यूज़पेपर बिछा देते। और खुशी खुशी खा लेते। कितना मजा आता है बताइए। रोटी रोल करके दे देते। तो इसलिए बिल्कुल, फर्स्ट यू बिकम कॉन्शियस देन यू विल बिकम कृष्णा कॉन्शियस। हमको कॉन्शियस होना चाहिए क्या कर रहे हैं, क्या हम इन चीजों को स्वीकार कर रहे हैं, बिल्कुल कॉन्शियस होना चाहिए। तभी तो हम कृष्णा कॉन्शियस बनेंगे। हम अब उसमें कॉन्शियस ही नहीं है क्या कर रहे हैं, तो क्या कृष्णा कॉन्शियस बनेंगे। इसीलिए शास्त्र के गुह्य बातों को चर्चा करने पर कई लोग ऐसे देखते हैं कि जैसे मानो कुछ कुछ संस्कृत में कहा जा रहा है। सरल भाषा में समझाने पर भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि उस लेवल पे बुद्धि को विकसित नहीं किए, ऐसे भोजन नहीं, ऐसे आदतें नहीं, कुछ नहीं समझ में आया। पूरा सुनने के बाद पूछो क्या समझा, पता नहीं क्या समझ, कुछ क्या बोले समझ में नहीं आया। तो इसीलिए हमको आहार शुद्ध होना चाहिए, घर में शुद्धता होनी चाहिए। और बिल्कुल पवित्र रहना चाहिए। जिस वस्त्र से आप सोए हैं उस वस्त्र को धोने के लिए डाल दीजिए, उसको अलग रखिए। और जिस वस्त्र में आप अगर मॉर्निंग वॉक वगैरह जा रहे हैं तो वस्त्र अलग रखिए। आप कुछ अगर वो कपड़े पहनकर आप अगर कहीं नाई के पास जा रहे हैं तो उसको अलग रखिए। वो सब बिल्कुल अलग होना चाहिए। उसको धो लीजिए, बेस्ट है कि धो लीजिए। और आप अगर भगवत कार्य में है, कुकिंग करने के लिए जा रहे हैं या को आरती करने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, तो आपके जो बेड है जिसमें सोते हैं उसको कभी मत छूइए। आप सो लिए उठ लिए, आपका जैसे खाट आजकल है उसको फोल्ड नहीं कर सकते ना जनरल, नहीं तो चटाई है तो फोल्ड कर सकते हैं। तो ठीक है, पर पूजा करते वक्त तो अलग से कपड़े पहन के पूजा में जाइए, कुकिंग में जाइए, फिर वो बेड मत टच करिए। विश्राम करना हो, सारे काम हो गया, फिर आप विश्राम करिए। फिर बाद में स्नान करके शाम को फिर दूसरे कपड़ा चेंज करके फिर गौर आरती करिए। दिन में कम से कम 2 बार तो कपड़े बदलने ही चाहिए। हाँ, ये मिनिमम स्टैंडर्ड है। तो इन नियमों को पालन करेंगे तो हमारे हरे कृष्ण महामंत्र में भी और ध्यान लगेगा। भगवान के प्रति जो अपराध होते हैं, मैं कल गिनाऊंगा आप लोगों को अपराध कितने हैं। ये सारे चीजें आएंगे अपराधों में, कि अपराध नहीं करेंगे तो भगवान को जो हम पूजा कर रहे हैं उसमें शुद्धता रहेगा तो भगवान भी प्रसन्न रहेंगे। और अपराध भी नहीं लगेगा। शुद्ध भोजन बनेंगे शुद्ध चेतना से, तो जो भगवान को भोग लगाएंगे भगवान भी उसको स्वीकार करेंगे बड़े प्रेम से। और खाने वाले को प्रसाद भी मिलेगा तो उनका भी चेतना शुद्ध हो जाएगा। ये पूरा साइंस है। और सबसे बड़ी चीज क्या है पता है, इसमें बुद्धि का विकास इतना तीव्र गति से होता है कि व्यक्ति का इतना सूक्ष्म बुद्धि हो जाता है कि वो सही गलत में फर्क जल्दी पकड़ सकता है। नहीं तो फिर तो भैंस की वो तो गई भैंस पानी में कहते हैं ना, वैसे पानी में जाके भा करके आवाज करता है, उसको पता ही नहीं चलता कि उसके शरीर में कीड़े भी खून पी रहे। हाँ, वो जोक जोक होते हैं ना, खून पीते हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो गटर में पड़ा रहता है दिन भर। हाँ, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। मंद बुद्धि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट बनना है तो शुद्धता चाहिए और पवित्र रहना चाहिए। और अभक्तों के हाथ से बना हुआ चीजें नहीं खाना चाहिए। और घर में अगर कोई अभक्त आ गया तो किचन में अलाउ मत करिए। अभक्तों को किचन में अलाउ नहीं। आप अपना जितना काम है उतना कर लीजिए। और आपको अगर प्लेट धोने के लिए भी दिक्कत हो रहा है, सर्दी आ गई, हाँ, प्लेट धोने दिक्कत हो रहा है, पत्तल ले आओ, चलेगा। गर्म पानी से आपके अपने बर्तन धो लो, चलेगा, पर खुद करो। बस ज्यादा हो गया, फेस्टिवल हो गया, आप किसी से करवा दो, वो अलग मैटर है। पर आप सिंगल हैंडेडली अगर कर रहे हैं, आप 3 लोग 4 लोग 5 लोग एक कम है तो खुद कर लेना चाहिए। और कुकिंग करने के लिए, सब्जी काटने के लिए, ये तो किसी को अलाउ नहीं। आपको पता है चूल्हा जलाने के लिए, भगवान के लिए जो भोग बनता है उसमें चूल्हा जला केवल अग्नि जलाने के लिए भी ब्राह्मण दीक्षित चाहिए। बिना ब्राह्मण दीक्षा के आग भी नहीं जला सकते। इतना स्ट्रिक्ट नियम है, शुद्धता का ये है, लेवल है। और आग हम किसी भौतिकवादियों को घर पे बुला के बोलेंगे आप बना लो, भोग लगाना है, कोई जरूरत नहीं। हाँ, तो खुद बनाइए शुद्धता पवित्र होकर। ये सब चीजें मैंने कहा, ये बेसिक चीजें हैं, ये कोई बड़ी ये नहीं है, पर ये बेसिक चीजें हमारे लिए बहुत बड़ी लगती है, इसलिए तपस्या के कैटेगरी में मैंने डाला। ये सब तपस्या है। क्योंकि आसानी से तो कई चीजें हो ही जाते हैं हमारे, बड़े आसानी से कई काम कर लेते हैं। अरे उठा चला गया किचन में, हाँ, गरम दूध गर्म कर लिया, पी लिया, चाय पी लिया, ये तो बड़े आसानी से होता है। पर ये सब नियमों को पालन करना ये थोड़ा कष्टदायक होगा शुरू शुरू में। बाद में तो खैर आदत हो जाता है तो अच्छा लगता है। पर शुरू शुरू में ये कष्टदायक है, इसलिए तपस्या है। हिरण्यकशिपु की तरह, जैसे हिरण्यकशिपु यहाँ तपस्या कर रहा है, भागवत में वर्णन है, ऐसे कठोर तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं। जो मैं इन चीजों को मैंने बताया आज, सुबह उठना, मंगलारती करना, तुलसी आरती करना, नरसिम्हा आरती करना, गुरु पूजा करना, भागवत सुनना, ध्यान पूर्वक नाम मंत्रों का उच्चारण करना, अपराधों से बचना, शुद्धता का पालन करना,
हाँ, किचन को शुद्ध रखना, स्नान करना बार बार, शुद्ध वस्त्र पहनना, विधिवत पूजा करना, विधिवत भोग लगाना, ये तपस्या है। चार नियमों को पालन करना, अशुद्ध भोजन स्वीकार नहीं करना, बिना भोग लगाए कुछ नहीं खाना, अन्य के घरों में तो कुछ नहीं खाना कभी नहीं। पानी भी आप अपना बोतल लेके जाओ कहीं जाना हो। हाँ, एक फैमिली से मैं अभी समझा रहा था 3-4 दिन पहले कि आप नियमों को पालन करिए, तो बोल रहे थे कि शादी वगैरह जाते हैं तो क्या करें। मैंने उनको एक ही प्रश्न पूछा, शादी में आप अगर खा रहे नहीं खा रहे कौन आपको देख रहा है? कोई आके कह रहा है कि खा के जाओ? कि नहीं खाए क्यों, कोई आके टाइम बिता रहा है आपके साथ? नहीं। तो फिर टिफिन लेके जाओ अपना, या तो खा के जाओ या आके खाओ, और ऐसे कहीं दूसरा जुगाड़ करो। हाँ, प्रभु जी ट्रैवलिंग में रहते हैं, अलग अलग शहरों में जाते हैं कई बार, तो क्या करें? ऐसा कोई शहर है जहाँ इस्कॉन मंदिर नहीं है? प्लान करो, इस्कॉन मंदिर में जाके खाओ। मैं भी पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ, कहीं बाहर खाने की नौबत नहीं आया। क्यों? क्योंकि हम इस्कॉन मंदिर ढूंढते हैं। इतना प्रयास हमको करना ही चाहिए, क्योंकि जिस जो ठान लिया है मुझे बाहर नहीं खाना है, वो ढूंढेगा कहाँ मुझे भोजन मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, वो ढूंढेगा ही ढूंढेगा। और जिसको हर जगह चल जाता है, कहीं भी ये चल जाता है, तो फिर कहाँ ही ढूंढेगा? वो तो बोलेगा इस्कॉन कहाँ है, पता ही नहीं, हम तो देखा ही नहीं कोई शहर में। ढूंढेंगे तो सब मिलेगा। हाँ, तो इस प्रकार से शुद्धता का पालन करना चाहिए। किसी के बर्थडे पार्टी में गए, बोलेंगे लो 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 केक खा लो। हाँ, ये लो लो नमकीन खा लो। क्या करें प्रभु जी, बर्थडे में गए और मजबूरी था, रिलेशन में है, कुछ मना नहीं कर सकता। मैं यहाँ साल में कितने बर्थडे हम सेंटर में करते हैं, घरों में भी लोग बुलाते हैं बर्थडे में, बच्चों के बर्थडे होते हैं तो हम जाते हैं। केक कटिंग भी होता है, कई बार मेरे से भी केक काटने के लिए कहते हैं। पर आज तक मैं कभी केक नहीं खाया, कोई नहीं खिला पाया मुझे। मैं मना करता हूँ, मैं केक नहीं खाता हूँ तो नहीं खाता हूँ, कोई नहीं खिला सकता। आप मना किया और कोई खिला दे जबरदस्ती आके, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं साल में एक ही दिन वो केक खाता हूँ, वो भी जन्माष्टमी के अगले दिन शिल प्रभुपाद जी की व्यास पूजा में। हम जो शुद्धता से केक बनाते हैं, ऑर्डर देके, हमारे एक ब्रजवासी है यहाँ पर, वो केक स्वीकार करता हूँ थोड़ा, क्योंकि प्रभुपाद जी स्वीकार किया। जन्माष्टमी भी हमारा राजगीर आटा का केक बनाते हैं, तो रात को अगर वो बंट गया तो अलग बात है, और बच गया तो थोड़ा वो स्वीकार करते हैं। कभी नहीं, कई बार मेरे जन्मदिन पे भी लोग केक लाते हैं, मना करता हूँ। मतलब केक आप लोग खाओ, आपको अच्छा लगे सब खाओ। हम अगर स्ट्रिक्ट है तो ये ब्रह्मांड में कोई नहीं है जो आपके पीछे पड़ जाए, खाना ही पड़ेगा केक, ऐसा नहीं हो सकता। हम नहीं खाएंगे तो कौन हमको फोर्स कर सकता है? नहीं कर सकता। आप अगर आप शुगर पेशेंट है, आपको कोई मिठाई खिला सकता है? नहीं। आप अगर हार्ट पेशेंट है, आपको कोई पकौड़े खिला सकते हैं, तला हुआ चीज खिला सकता है? नहीं। आप बोलेंगे भाई मैं अभी अभी मेरा हार्ट ब्लॉकेज निकला, मैं अभी दवाई खा रहा हूँ, मैं कैसे तला हुआ खाऊं? आप सीधा बोलोगे, वो भी डर जाएगा। अब मैं शुगर पेशेंट हूँ, मुझे मीठा खिला रहा हूँ, मारना है क्या? वो नहीं खिलाएगा। जब ये हो सकता है तो आप बोलोगे मैं अभी वैष्णव आचरण कर रहा हूँ, अभी मैं दीक्षा लेने वाला हूँ, या दीक्षा ले ले लिया हूँ, मैं कैसे खा सकता हूँ? वो कभी नहीं बोलेगा, वो तो डरेगा, भाई अपराध हो जाएगा इसको खिलाऊंगा तो इसलिए बी केयरफुल। बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। जितना स्ट्रिक्ट रहेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम ऐसे ढीला ढाला करेंगे तो सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आज मैंने केवल प्रभुपाद जी के द्वारा दिए हुए जो इन नियमों के बारे में केवल कहा, क्योंकि यहाँ तपस्या की वर्णन आया था। तो मैंने बोला तपस्या हमको इन चीज़ों को करना चाहिए करके, कुछ चीज़ों को डिटेल में, कुछ संक्षेप में मैंने कहा, जो ये कह सकता था 1-1.5 घंटे में। और इन चीज़ों को बहुत सावधानी से ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा कल अगर हमारे उत्तम जगदीश को अलाउ करें, कल अगर मुझे क्लास देने के अवसर मिला, तो भक्ति रसम सिंधु के कुछ नियम बताऊंगा। अपराध और भक्ति कैसे करनी चाहिए, शुद्ध भक्ति क्या है, और इनमें बचने के लिए अपराध कैसे होते हैं, क्या क्या अपराध है जिससे बचना चाहिए, इसके ऊपर हम कर सकते हैं। हाँ, कल करें प्रभु क्लास, उत्तम प्रभु? जी ठीक। प्रभु जी। हाँ, नहीं प्रभु जी मैसेज किए थे 2-3 दिन ही क्लास देना है, इसलिए अब 3 दिन हो गया। नहीं 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 प्रभु जी, तो बहुत आपके, सुंदर विषय चल रहा है प्रभु जी, आप क्लास इसको कंटिन्यू कीजिए ना। तो ठीक है, 3 दिन के बाद कंटिन्यू आज्ञा मिला तो करेंगे, वैष्णव आज्ञा से ही करेंगे हम। और 2-3 दिन लिखे तो मैं 3 दिन वाला चीज़ों को सीरियस ले लिया, 2 दिन वाला नहीं लिया। बोला जब वैष्णव आज्ञा मिलता है तो बड़ा उत्साह रहता है कथा करने। तो अच्छा है, कल भी करेंगे हम, है ना? फिर आगे फिर और वैष्णव को भी अवसर देंगे, और सीनियर भक्त लोग और भी एक क्लास देंगे, है ना? हरे कृष्णा। ठीक है, शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।